जिंदगी कहाँ कुछ बताती है, आज कुछ तो कल कुछ और दिखाती है हमें। अब जब सपनों के तराने और तमन्नाओं के अफसाने कहीं थम गए हैं, उन दबे अरमानों को बेइंतहा तेजी से आगे हमें ही तो बढ़ाना है। मैं और तुम जब हम में बदल जाएंगे तो हर उम्मीद का हंसी जहां बनाएंगे। साथ मिलकर हम जमाना ही नया बनाकर दिखाएंगे। बस अब हमें इत्मीनान बरतना है, हारे हुए वक्त को बेशुमार जीत में मिलकर बदलना है। इकट्ठा एक साथ नई मंजिलों की ओर चलो साथ मिल कुछ कमाल कर दिखाएं। वर्गो लैमिनेट्स, खुशियों की ओर चलो मिलकर बढ़ाएं कदम। Let's start with all who are online. I would like to introduce everyone one by one. आज राजीव जी को इंट्रोड्यूस करना था सभी को। आज राजीव जी हमारे मैनेजिंग एडिटर प्लाई रिपोर्टर के, उनका जिम्मा था कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे और वो आज इस पैनल की शुरुआत करेंगे और मैं आपसे सवाल पूछूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ पैनलिस्ट को छोड़कर, 2-3 लोगों को छोड़कर और राजीव जी को छोड़कर, कुछ टेक्निकल ग्लिच आने से हम लोग उन्हें अभी तुरंत नहीं ले पा रहे हैं। समय के पाबंदी के चलते मैं ये ऑफिशियली वेबिनार शुरू कर रहा हूं। सरस्वती माता की वंदना के साथ सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा ललित जी को। श्री ललित जी ग्रीन वैली मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड मुंबई से, इनकी एक डिस्ट्रीब्यूटर फर्म है। दे आर वेरी लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर्स, and since I don't have his formal introduction, it is with Rajiv, but whatever I know, I am introducing Lalit ji. Welcome Lalit ji on board. Lalit ji is in this line since 25 years and he has done huge volume across Maharashtra, Goa, Karnataka. He has been distributor for various good brands, working with North India companies, specializing in film face plywood, supplying material to big corporates as well as retail sector across Maharashtra. I welcome Lalit ji here on the panel. Thank you. Mr. Kishore Mutta ji is from a reputed firm called JS Mutta Pune. He is one of a known person in the circle. I am happy to see Mr. Kamal Shah as well, thankfully. very elated to see Kamal ji. मैं तो डर रहा हूँ कि क्यों नहीं ऐसा कभी होता नहीं है। I will introduce Kishore Mutta ji. He is from JS Mutta. He is a super fine businessman, retail and doing wholesale of different materials. He has been dealing with various companies and I welcome JS Mutta ji from Pune. Kishore Mutta ji from Pune. Thank you so much. I also welcome Mr. Naveen Poddar, director of Sri Shyam Plywood Bangalore. He is known to be a large firm, wholesale firm. Who doesn't know Shyam Plywood in South India? He has distribution pockets across Karnataka, even in other states, dealing in plywood, doors and other materials. He has tremendous experience. नवीन जी कभी भी ओपन फोरम में बोले नहीं है, लेकिन आज मैं उनका स्वागत करता हूं कि वो खुल के बोलेंगे। नमस्ते नवीन भाई, वेलकम ऑन बोर्ड। नवीन भाई सुन पा रहे हैं? एकदम सुन रहे सर। बहुत अच्छा। I will also welcome Shri Kamal Shah ji, Indo Burma Agencies from Bangalore. Thank you. Good afternoon to everybody. Kamal Shah ji, a professional chartered accountant from Bangalore in business of decorative laminates, plywood, veneers, doing very fine business with many corporate reputed firms and with vast knowledge in wood panel sector, vast experience in decorative products. I wish to see a lot of good words and wisdom from Kamil ji. Welcome on board on this platform. Thank you very much. Thank you. I also welcome Deepak Chheda ji. He is known to be very straight spoken. क्या बोलते हैं, सीधी बात करते हैं। दीपक छेड़ा जी बहुत एक अच्छे रिटेलर हैं। क्लासिक प्लाई एंड वुड बॉम्बे से, तारदेव में इनकी रिटेल शॉप है और इनका आज बहुत बड़ा रोल है
कि एक रिटेलर जो बंदी में है वो क्या महसूस कर रहा है इस बंदी में, लॉकडाउन में, और उस पर क्या गुजर रही है, उसकी कितने सपने चूर चूर हो रहे हैं और कितने सपने वो नए नए बुन रहा है। दीपक छेड़ा जी से मैं स्ट्रेट सवाल पूछूंगा और उनसे स्ट्रेट आंसर चाहूंगा। वेलकम दीपक छेड़ा जी। अगर कोई इंट्रोडक्शन में मैं छोड़ा आपका कुछ, चूंकि मेरे पास तैयारी नहीं है, तो माफ करेंगे। वेलकम। Piraj Sahni ji, a young man from hello Piraj, how are you? So a young man, very active, known to be very active in laminate distribution of Greenlam, Vergo, and he is also doing very fine business in Maharashtra region, especially operating in Kalyan. Kalyan se hai na sir? Thane se sir, Thane. Thane se sir. So he is from Thane. We can call him from Mumbai, and I welcome Piraj to be here on this panel. Thank you so much. Piraj is very young और वो दिल से बात करते हैं, और मुझे लगता है कि आज जो भी पूछा जाएगा वो शॉर्ट, स्वीट और क्रिस्प बताएंगे। मैं किरण भाई का बहुत तहे दिल से वेट कर रहा हूँ, किरण गाला जी और राकेश कोखानी जी। किरण गाला जी अभी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मैं फिर से इंट्रोड्यूस करूंगा। किरण गाला इज फ्रॉम गाला ग्रुप। परगत भाई मैं सुन पा रहा हूँ आपको। तो नाइस टू, आप एक बार और लॉगिन करके शायद दिख पाए, या मैं पूछूंगा कमल शाह जी, जब आप नहीं दिख पा रहे थे तो फिर से लॉगिन करने से आ गए या क्या हुआ? हाँ, फिर से लॉगिन किया था। तो आज ये बजाज स्कूटर की तरह हमारा जूम चल रहा है, क्लिक मारना है और शायद ये चालू हो जाए। किरण गाला जी से मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार फिर लीव करके और लॉगिन करें, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ किरण गाला जी का। ही इज द फाउंडर एंड head of the organization Kala Group. They are into various operation. They are into retail. They are into decorative products. They are also importers of flooring and various decorative material. They are also dealing in lights and tiles. They are also dealing in stone and decorative furniture, artifacts and etc. मैं बहुत कुछ बता भी नहीं सकता। मार्बल्स का एक 25 सालों का लंबा चौड़ा रिटेल में पकड़ और मजबूती से काम रहा है, बहुत अच्छा रेपुटेशन है। इसको इन्होंने बहुत कम समय में स्थापित किया है। आई वेलकम किरण गाला जी ऑन दिस पैनल, और मैं प्रे करता हूँ जल्दी से उनकी तस्वीर दिखे। आई वेलकम राकेश कोखानी जी फ्रॉम निर्वाणा मॉड्यूलर। ही इज फ्रॉम वसई बॉम्बे। उनकी एक अच्छी यूनिट है फर्नीचर की, रेडीमेड फर्नीचर की, किचन्स की, वार्डरोब की, बहुत अच्छा काम करते हैं। कंपोनेंट बनाते हैं, फर्नीचर कंपोनेंट बनाते हैं। हम आज आने वाले भविष्य में फर्नीचर और रेडीमेड रिटेल का मर्जिंग कैसे होगा उस पर उनसे सवाल पूछेंगे। इसके लिए आज मैं उनका इस पैनल पर स्वागत करता हूं। राकेश कोखानी जी, वेलकम। Thank you very much, sir. Thank you. Good afternoon, everybody. Good afternoon. And I think I have introduced everybody. Rajiv Parashar, managing editor. I'm not able to see him, but today he was supposed to introduce everyone. Rajiv is here. Rajiv, I have already introduced your part. Let's move ahead. So मैंने सबको इंट्रोड्यूस कर दिया है, अब मैं पैनल की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले सभी ऑडियंस को, वी आर ऑलमोस्ट अबव 700 पीपल हियर विद अस। सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा ललित अग्रवाल जी से। ललित जी, आप बॉम्बे में हैं, आप होलसेलर हैं और आप लॉकडाउन में हैं और आपके चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है। मुझे ये बताएं, कोरोना के बीच एक डिस्ट्रीब्यूटर के दिल पे क्या गुजर रही है? थैंक यू वेरी मच। एक तो सबसे पहले मैं बात ये बताना चाहता हूँ, मैं तो कोरोना के बीच में नहीं है, मेरी तो बिल्डिंग में भी कोरोना ही है। मेरी बिल्डिंग कल तक सील्ड थी और आज मैं फ्री हुआ हूँ आपके प्रोग्राम के साथ साथ में। अब ये प्रॉब्लम ये है, तो सबसे बड़ी अभी जो महाराष्ट्र या बॉम्बे का जो अभी भी जो डिसीजन आया उसके हिसाब से 31 तक तो ये एक्सटेंशन बढ़ चुका है। अब कोरोना के टाइम में जो हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, जो 4-5 प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी है। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हमारा पेमेंट जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आज के समय फैक्ट्रियों की हालत बहुत खराब है, क्योंकि फैक्ट्रियों के सामने अनसर्टेनिटी है कि फैक्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी। पहले तो उनका लेबर का प्रॉब्लम है, उसके बाद अगर हम टाइमली उनको पेमेंट नहीं दे सकेंगे अगर फैक्ट्री वालों को, तो ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी होगी। और ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकती है जब हमारे जो डीलर है, हमारे डीलर हमको राइट टाइम में पेमेंट दे सके। अब डीलर की अपनी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि अगर लॉकडाउन खुलेगा भी, खुलने के साथ साथ पेमेंट की उनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है।
तो ये एक भारी दिक्कत है। उसके बाद जब मैं ये देखता हूँ कि अगर लॉकडाउन के बाद भी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होने वाली है मार्केट के अंदर, ये अभी जो कस्टमर है, कस्टमर का अभी नादारद रहने वाले हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है। ये सवाल तो मैं आगे पूछूंगा कि कस्टमर का क्या होगा। अभी तो मैंने ये सिर्फ पूछा कि कोरोना के बीच में आपका दिमाग परेशान है, यानी आपने कहा कि डीलर पैसे देगा कि नहीं, इसमें आप परेशान। नहीं, इस पे नहीं है मेरे को प्रॉब्लम, डीलर देगा कि नहीं वो, लेकिन क्या राइट टाइम पे अगर हम फैक्ट्री वाले को पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आगे का चक्का नीचे चल पाएगा, वो एक साइकिल पूरी की पूरी टूट जाएगी इसमें। ये एक बहुत बड़ी चिंता के कारण है हमारे लिए। थैंक यू ललित जी। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से किरण गाला जी और राकेश कोठानी जी भी दिखने लगे। इससे आगे चलने के पहले मैं सबसे पहले वर्गो ग्रुप का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज के इस वेबिनार के स्पॉन्सरर वर्गो ग्रुप है। वर्गो एक बड़ी कंपनी है। वर्गो ग्रुप इज इनटू वेरियस प्रोडक्ट। दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ laminate. They are also into plywood, PVC laminate, aluminum sheets. They are into pharma. They have more than 3,000 employees working with them. Virgo Group is ready with 4 factories across the country. They are having factory in Himachal, Punjab, Bhiwadi, and also in Karnataka. Recently they started near to Karnataka in Andhra Pradesh, Telangana region. I thank Virgo Group for sponsoring this expenditure on happening on this entire show, and I particularly thanks Mr. Nikhil and Mr. Surinder Arora and his team, जिन्होंने ये कहा कि आप इसे करें और इस अवेयरनेस में हम आपके साथ हैं। वर्गो ग्रुप का एक बार पुनः धन्यवाद। 32 ब्रांचों के साथ, 4 इंटरनेशनल ब्रांचों के साथ, बड़ी कैपेसिटी लेकर लैमिनेट बना कंपनी दिनों दिन अपनी विकास करती जा रही है। थैंक यू वर्गो ग्रुप फॉर बीइंग वेबिनार। और मुझे अब किरण गाला जी दिखाई दे रहे हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि आप दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू, वेलकम किरण भाई। मैं नवीन जी से पूछना चाहूंगा अगला सवाल। नवीन जी, लॉकडाउन में ललित जी बॉम्बे में तो परेशान है कि पेमेंट नहीं आएगी तो फैक्ट्री वालों को कैसे देंगे। उनकी अपनी समस्याएं हैं, लॉकडाउन की अपनी समस्याएं हैं, जो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर इन कर्नाटका, आपकी लॉकडाउन में क्या समस्याएं रही? और आपके यहाँ तो लॉकडाउन खुल भी गया, तो जो बंद था तो क्या सोच रहे थे और खुला तो क्या बदलाव आया? ऐसा है कि बंद में तो हम लोग ये नहीं सोच रहे थे, ये सोच रहे थे जो हमारे यहाँ 200 लेबर हैं उनको कैसे ध्यान रखा जाए और क्या किया जाए। तो उसमें ही हमारे लड़के लोग बहुत मेहनत की और 45 दिन 50 दिन तक का वो तीनों टाइम खाना देना करना वो किया। हमारा लॉकडाउन 24 तारीख से खुल गया था बैंगलोर में जी। तो हमारा काम तो ऑलमोस्ट हम लोग 60-65% कवर करके सेल अपना, और जितनी फैक्ट्रियां थी जो माल हमारी केरला से आती थी वैसे ही आवाज आपकी अनम्यूट हो। हाँ, आवाज थोड़ा जी। हाँ नवीन जी, आपकी केरला से फैक्ट्रियों से माल आता था, वो चालू हो गया? हाँ चालू हो गया। अच्छा, जो पहले स्टेज में उसी स्टेज से आ रहा है, क्योंकि तमिलनाडु और महाराष्ट्र पूरा बंद होने से उनका पूरा फोकस कर्नाटक ही था इन लोग का। तो ये एक चीज बताइए, जैसे लॉकडाउन में आप 1.5 महीना बंद रहे, पर ये जरूर मन में सवाल आया होगा कि क्या होगा, लेकिन लॉकडाउन खुला तो वो डर निकला क्या? मुख्य मुद्दा तो यहाँ है पूछने का, या अभी डर बना हुआ है? नहीं, डर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए, इससे फाइट तो करना ही है और सबको इससे आगे निकल के बाहर निकलना ही पड़ेगा, फाइट भी करना पड़ेगा। डर क्या आप खुद शोरूम मतलब जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं कि अभी घर में ही है? 24 तारीख से बाहर घूम रहे हैं रोज। डर नहीं लगता कि कोरोना फैला हुआ है? डर खाली यही लगता है मम्मी पापा घर में है, बस वही डर है, और तो कोई डर नहीं है। बाकी जिसको होना है तो होगा ही। आपने अभी एक चीज और कही कि 60% 50% डिमांड आई है। क्या ये सभी अक्रॉस सभी प्राइस के लिए है कि खाली ब्रांडेड के लिए है कि खाली केरला के लिए? ब्रांडेड में नहीं आई है, कम माल में आई है, और छोटे गांव में बहुत अच्छा सेल है। आप छोटे गांव मैसूर या हसन, वहां जितना अच्छा सेल पकड़ा है, प्रॉपर बैंगलोर में तो 5% भी सेल नहीं आया है। यहाँ भी सब अपार्टमेंट सब बंद है, अभी कोई भी कारपेंटर काम नहीं कर रहा। लेकिन छोटा जितना भी गाँव है, हम लोग खेड़ा बोलते हैं, जो बहुत अच्छा सेल पकड़ा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। और जैसे लगता है कि लॉकडाउन में इन्होंने सबने बिजनेस किया है, इन्होंने बंद नहीं किया था। तो खुलते ही इन्होंने ऐसे माल मांगा जैसे लग रहा कि इनके पास माल नहीं था। तो जो ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि खोलते ही माल मांगा जैसे माल ही नहीं था, और आज जब माल
आपने दे दिया और लगा कि गांव में अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि शहरों में तो सब कुछ बंद है, क्या ये सिस्टम आगे भी चालू रहेगा? मैं ये सवाल किशोर मुत्ता जी से पूछना चाहूंगा, पूना से। अनम्यूट करिए किशोर मुत्ता जी। हाँ जी, कि क्या लॉकडाउन के खुला, क्योंकि पूना में खुला और बंद दोनों रहा है, हाँ, क्या ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये डिमांड आपके यहाँ भी आने वाली है या चल रही है? क्योंकि महाराष्ट्र भी तो काफी एरिया खुले हुए हैं बाहर के, बॉम्बे के बाहर के। अगर पूना का अगर हम पकड़ेंगे तो पूना का जो सेल है वो तो नहीं है, मतलब पूना जो सिटी का सेल है वो नहीं, बिकॉज टिम्बर मार्केट जो हमारी एरिया है वो एरिया पूरी चारों बाजू से स्लम से पूरी घेरी हुई है। जो मेन मार्केट है हमारा, मेन मार्केट जो टिम्बर मार्केट में, वो पूरा स्लम्स है आजू बाजू में, और जितने भी पेशेंट्स निकले पूना से वो सारे स्लम्स में से, लगभग देखा तो स्लम्स में से। तो टिम्बर मार्केट अभी तक खुला नहीं है, पूरा एकदम सील किया हुआ है उसको। लेकिन हमने देखा कि महाराष्ट्र के जो कुछ पार्ट्स है, जैसे अभी कोल्हापुर है और शोलापुर है, बार्शी है, जो छोटे छोटे टाउन्स है, जैसे कराड, सतारा हुआ, हमारा नासिक हुआ, वहां से सेल्स आ रही है, वहां से इंक्वायरी आ रही है, हमारा वेयर हाउस बाहर भी है। तो थोड़ा और आगे आके बोलिए, सब लोग थोड़ा आगे आके बोलिए, सबको हमारे ऑडियंस सुन नहीं पा रहे हैं जी। हाँ, आप तो जो सेल है हमारी, जैसे लोकल सिटी में, जैसे सिटी में तो सेल नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र से हमारी सेल आ रही है। हमारी जो पैकिंग इंडस्ट्रीज है, जैसे आप अगर हम मानेंगे तो चाकन है हमारी, जो ज्यादा करके इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर से भी सेल आ रही है हमारे को, बिकॉज वहां पर इंडस्ट्री खुल गई है। और जैसे वो एक्सपोर्ट बॉक्सेस बनाते हैं तो उसको प्लाई लगती है केरला की, तो उसके डिमांड आ रही है। वो जैसे अहमदनगर है, चाकन है, और हमारे जो सिरवल करके एरिया, जो सतारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सिरवल, वो इंडस्ट्री एरिया है, हमारी चाकन एरिया है। और अहमदनगर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर इंडस्ट्री है, वहां से पूरा सेल आ रहा है, वहां के ऑर्डर्स आ रहे हैं। और जैसे पूना का कोई भी ऑर्डर्स नहीं है। और जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है, जैसे गोवा का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था, तो पुणे से मटेरियल कुछ जा रहा था, तो गोवा के 1-2 प्रोजेक्ट चालू है, तो वहां पर भी मटेरियल अभी उन्होंने बोला है कि जैसे उन लोग अरेंज कर रहे हैं और व्हीकल अरेंज करके जाने वाला है मटेरियल मंडी। तो यानी आपका कहना यह है कि पूना पर्टिकुलरली सिटी में डिमांड बिल्कुल नहीं है, लेकिन बाहर गांव से सेल आ रही है और आप उसे कैटर कर पा रहे हैं। परसेंटेज कितनी सेल आ रही है ये बात मैं आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन इसके बाद सबसे पहले मैं कमल शाह जी के पास आऊंगा। कमल शाह जी, बेंगलोर खुला हुआ है, आप एक शहर के बीच में बैठे हुए हैं काफी समय से, काफी सालों से। हाँ, डिमांड थोड़ी बहुत जहां जहां खुला है वहां आ रही है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि ये डिमांड आ कहां से रही है। मुझे ये गुत्थी सुलझाने में मदद करें कि ये डिमांड आ कहां से रही है। देखिए ऐसी बात है कि जिसका काम चल रहा था, जो समझो इंटीरियर का जिसका काम आधे पे रुका हुआ था। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो जिनका और जिसके पास में कारपेंटर फिर भी थोड़े बहुत बचे हुए हैं, वहां पर उन्होंने कंटिन्यूसली 2 हफ्ते से, हमारा जो 4 मई से कल तक 2 हफ्ता टोटल कंप्लीट किया बिजनेस का, और रीजनेबली ओके डिमांड। ऐसा नहीं कह सकते कि 100% एकदम सही चला, लेकिन ऐसा लगा कि जो नॉर्मल बिजनेस होना चाहिए था उससे एटलीस्ट 60 to 70% काम चला। तो कहने का आशय ये है कि ये जो काम चला, ये खाली आवश्यकता वाली डिमांड थी, यानी बस अब लॉकडाउन खुला है तो जल्दी से पुराना काम करा के भाग जाओ, वैसी वाली थी, या सच में काम वाली थी? नहीं, अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि जिनका काम आधे पे अटका हुआ था, 90% डिमांड ऐसी आई, क्योंकि जिसके पास कारपेंटर होगा वही काम कर पाएगा। और हमने हमारे काफ़ी जो एस्टैब्लिश जो मिस्त्री है, उनके 60 to 75% कारपेंटर्स राजस्थान चले गए वापस, कैसे भी, मतलब बाई बस, बाई ट्रेन, बाई ट्रक्स, तो अनऑफिशियली, ऑफिशियली। 70% कारपेंटर्स बेंगलोर सिटी से कमल शाह जी कहते हैं कि घर चले गए। किशोर भाई पूना से कहते हैं कि हमने बाहर गांव में काम किया। नवीन पोद्दार जी बेंगलोर से कहते हैं कि हमने भी बाहर गांव में खूब माल बेचा और 50% काम कर रहे हैं। ये गुत्थी बहुत उलझ रही है, ये समझ नहीं आ रहा है कि 70% कारपेंटर चले भी गए, काम भी निकला, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि अब आगे कितने दिन काम चलेगा। किरण भाई,
हाँ हेलो जी सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन। और प्रगत भाई और टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसा वेबिनार करके एटलीस्ट हमारे ट्रेड में काफी अवेयरनेस लेके आ रहे हैं, तो मैं आपको और एक बार धन्यवाद कहूंगा। अच्छा, बात ऐसा है कि अभी जो डिमांड है, जो फर्स्ट वीक, जैसा कमल भाई ने कहा कि फर्स्ट वीक हम लोग के लिए थोड़ा बहुत डिमांड रहा, मगर उसके बाद ड्रेस्टिकली सेल्स काफी डाउन हो गया है। और आगे ऐसा लग रहा है कि जब तक लॉकडाउन कंप्लीट तरह से नहीं खुलेगा और बाहर के जब तक लेबर अपने यहाँ नहीं आएंगे, माइग्रेंट लेबर, तब तक ये स्लो डाउन रहेगा और ये अनदर 2-3 मंथ ये चैलेंज रहने वाला है। यानी किरण गाला जी कहते हैं कि डिमांड जो भी आ रही है वो पेंडिंग काम पूरा होने की आ रही है, और जब तक नहीं आएंगे वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स वापसी की राह नहीं पकड़ेंगे, डिमांड आएगी ही नहीं। नवीन पोद्दार जी, मेरा आपसे एक और सवाल है, और थोड़ा पास आकर, हाँ, क्योंकि अब आप बुलंद आवाज में मुझे एक छोटी सी बताएं बात कि क्या जो रिमोट एरियाज में आपने जो मटेरियल डिस्पैच किए कर्नाटका में और जहां से डिमांड आ रही, क्या वहां भी माइग्रेंट वर्कर हैं या वो लोकल वर्कर हैं जिसकी वजह से डिमांड आई है? मेरे ख्याल से वहां पर लॉकडाउन इतने ढंग से हुआ नहीं, जैसे नॉर्मल वो लोग सुबह बहुत, जैसे मेरे मैसूर में ब्रांच था, वहां पर किसी को माल चाहिए 10 सीट 20 सीट तो खोल के देते थे ये लोग। तो वैसे ही रिटेल के छोटे छोटे जो गांव है जहाँ कोरोना वायरस नहीं था, वो लोग माल बेचे हैं, और जो 45 दिन बंद रहा उसमें पूरा माल बेच के जब माल खत्म हो गया तो उनके पास पैसे ही बहुत थे और माल भी बहुत जरूरी था, तो किन्होंने भी, सबने मुझे पैसा ज्यादा भी दिया और माल भी लिया। अब जाके लास्ट 3 दिन में स्लो हुआ है बिजनेस। अच्छा, यानी आप डिस्पैच जिनको नहीं कर पाए थे उनको सबका माल आपने फर्स्ट 24 तारीख के बाद 3 दिन पहले तक आपने सबको माल डिस्पैच करके उनको माल दिया, उनसे पैसा भी आया। तो कहीं भी एक बार को ये लगा कि डीलरों के मन में खोट है, या कहीं कई लोग डर के मारे पैसे नहीं देंगे, जैसी जगह हो रही है? जैसे ही खुला है, जिसको माल चाहिए था सबने पैसा दिया है, और जिसको नहीं चाहिए था, जिसको माल नहीं बिका, वो नहीं दिए, लेकिन हो सकता देंगे, अभी जरूरत नहीं है, जब माल जरूरत होगा तब देंगे। हम उनके साथ हैं, कभी भी डीलर के साथ, और उनको कभी सपोर्ट करेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात है, दीपक छेड़ा जी से पूछूंगा, क्या रिटेलर सच में ऐसा ही सोचता है क्या कि जब जरूरत होगा तो माल के टाइम पैसा दूंगा? दीपक छेड़ा जी जरा सीधे सीधे सामने आइए, चेहरे पे लाइट डालिए और स्ट्रेट बताइए। बोलिए सर, बोलिए। गुड। क्या रिटेलर ऐसा सोचता है क्या कि अगर माल जरूरत है तभी पैसे देंगे? नहीं सर, नहीं। आपने दिया? किसको देना है पैसा? जिससे माल लेते हैं, अगर उससे माल की जरूरत नहीं है तब भी हमने पैसे अच्छे तरीके से ही ट्रांसफर किए क्या? जितना नहीं, देना पड़ता है सर। अभी लॉकडाउन में मैंने कम से कम 50 लाख रुपया भेजा है सर। अच्छा, यानी आप जैसे रिटेलर भी हैं जिन्होंने पैसे आगे भेजा? हाँ सर। तो पीछे से आया पैसा? आया पैसे, कुछ पैसे आए से 25-30 लाख आए, और जिधर अपना इनका रिक्वायरमेंट था, बड़ी बड़ी कंपनी का ये सेंचुरी है, लेमिनेट्स के है, तो उनको बैलेंस था, तो उनको हमने दिए, मतलब आरटीजीएस सबको करवा दिए, तो ताकि उनको आगे काम लगे और वो भी फैक्ट्री में आगे दे पाते सर। तो यानी अगर आपको 30 आया या 25 आया और आपने 50 दिया, तो आपने अपनी रिजर्व से दिया या कैसे दिया? नहीं, रिजर्व से दिया सर। रिजर्व से दिया। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा किरण भाई से। किरण भाई, आपका अनम्यूट है। यस, बोलिए। किरण भाई, रिजर्व से पैसा देना उसके लिए आसान है जिसके पास कैश रिजर्व यानी लिक्विड रिजर्व है, चेक या कैश, व्हाटएवर इट इज। लेकिन जिनके पास नहीं है, क्या वो भी पैसा देते हैं या दे पाते हैं? नहीं, वो कैसे देगा? पैसे का काम तो पैसा करेगा ना, पैसा कहां से लाएगा? अगर रिजर्व है तो दे सकता, नहीं तो कहां से देगा? और रिजर्व कैसे, वो रिटेलर कैसे होते हैं जिनके पास रिजर्व होता है, वो कैसे बनता है रिजर्व? देखो, एक तो लॉकडाउन सडनली हुआ था, तो काफी लोगों के पास थोड़ा बहुत कैश रिजर्व था, कुछ लोगों के पास पीछे से कलेक्शन भी आया, तो इस तरह से ये रोटेशन है। देखिए, रोटेशन में ऐसा नहीं कह सकते कि उसके पास रिजर्व था, नहीं था, बट ये रोटेशन में उनके पास आगे पीछे था। और लोग आजकल अपने रिटेल में कैसा है, सबके पास थोड़ा बहुत रिजर्व तो रहता ही है। क्या जैसे आज बहुत सारे रिटेलर लोग होते हैं जो अपनी कंपटीशन में बहुत नीचे, अच्छे मतलब नीचे कॉम्पिटिटिव रेट पे माल बेच देते हैं, क्या वो कंपटीशन में उतना कैश रिजर्व कभी बना पाए होंगे पास्ट में?
ये तो केस टू केस है, ऐसा नहीं कह सकते, मगर जिसने सस्ते में माल बेचा है, रोकड़े में माल बेचा है, तो कैसे फर्क का ही होगा। मेरा सवाल ललित अग्रवाल जी से है। ललित जी आप अनम्यूट करें अपने को। ललित हाँ, जी अनम्यूट हूँ। हाँ ललित जी, आपके बॉम्बे में ऐसा देखा गया कि लोग बोलते हैं कि वहां पर फर्नीचर की भी डिमांड रहेगी, कारपेंटर को लोग अपार्टमेंट में घुसने नहीं देंगे, लेकिन रेडीमेड फर्नीचर वालों से ही माल लेंगे। आपको ऐसा लगता है क्या कि रेडीमेड फर्नीचर वालों से माल लेना आगे आने वाले समय में ज्यादा प्रिफरेबल रहेगा बॉम्बे जैसे शहर में? देखिए, ऐसा है कि अभी की जो स्थिति है उसके हिसाब से क्या है कि कोई भी कारपेंटर को अपने घर पे बुलाना पसंद नहीं करने वाला है। और अभी जो गाइडलाइंस तो अभी तक आई नहीं है कोविड की, जो गाइडलाइंस आएगी उसमें सोसाइटी वाले भी अपना कुछ ना कुछ कंप्लायंसेस को ऐड करने वाले हैं। तो उस केस में ये बड़ा डिफिकल्ट होगा कि कोई भी आदमी मतलब ट्रेडिशनल में हमारे इंडियन सिस्टम ये है कि हम कारपेंटर को घर पे बुला के पूरा पूरा फर्नीचर बनाते हैं। तो इस केस के अंदर क्या है कि लोगों का झुकाव ज्यादा से ज्यादा क्या है, एक कारखाने से बनके, मॉड्यूलर से बनके वो फर्नीचर का आना जो है वो लोग उसको प्रिफर करेंगे। और एक बार ये सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद वापस इस सिस्टम में आने में जरा डिफिकल्ट होगा। और ये एक सिस्टम ऐसा है, अगर ये कोरोना नहीं भी आता तो इस ओर हम अग्रसर जाने वाले ही थे। क्योंकि अगर जो कारपेंटर है, कोई जरूरी नहीं है कि कारपेंटर का बेटा भी उसी हिसाब से उस सिस्टम में काम करना चाहेंगे। बॉम्बे में तो मैंने आपका फ्लैट भी बनते देखा है। मैंने तो देखा 6 महीने तक कारपेंटर उसी में घुसा रहा। नहीं, वो हमारी मेंटल, ये हमारी साइकोलॉजी है। हमको ऐसा लगता है कि घर पे हम कारपेंटर को बुलाएंगे, काम करेंगे तभी है। आप कुछ भी कहें, ये साइकोलॉजी बॉम्बे के फ्लैटों में तो दबा के काम करती है कि हम अपने 800 फुट का, 500 फुट का फ्लैट हो या 2000 फुट का फ्लैट हो, काम तो हम अपने हिसाब से ही कराते हैं। ऐसा मैंने साइकोलॉजी देखा है। मैं राकेश कोखानी जी, आई वेलकम निर्माणा मॉड्यूलर। ये सवाल बिल्कुल आपसे रिलेटेड है। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी सर, वेलकम ऑन बोर्ड। सबसे पहले मैं, आप इतने स्मार्ट हैं और शाइन कर रहा है आपका चेहरा। लॉकडाउन में आपने अपने आप को मेंटेन रखा है, इसके लिए बधाई। सवाल सिंपल है, क्या मॉड्यूलर फर्नीचर की ग्रोथ कोरोना के बाद वसई वालों को दिख रही है? सर डेफिनेटली मॉड्यूलर फर्नीचर ट्रेंड कल के लिए है, इट इज फॉर टुमारो एंड इट इज, मैं बोलूंगा ये बिगनिंग ऑफ द आइस, टिप ऑफ द आइसबर्ग है सर। ये स्टार्टिंग है। इन कमिंग टाइम्स, इन कमिंग इयर्स दिस विल बी मल्टीप्लाइंग इनटू 10 folds। तो क्या आपको लॉकडाउन में ऑफिस के जरूरी या किचन के ऑर्डर आए या आने की संभावना है? सर बाय ग्रेस ऑफ गॉड वी आर ब्लेस्ड विद वंडरफुल ऑर्डर्स। एनी ऑर्डर कैंसिलेशन तो जीरो है, ऑर्डर्स बहुत अच्छे लॉग इन है एंड नेक्स्ट वी कैन से फॉर नेक्स्ट 2 months वी आर बुक्ड फॉर द प्रोडक्शन। बट सो आर यू एबल टू रन योर फैक्ट्री? नो, वी आर अनफॉर्चुनेटली वी आर क्लोज बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप क्लोज हैं इसीलिए ऑर्डर 2 महीने के फुल हैं? नहीं सर, जेन्युइनली वी आर ऑलवेज ब्लेस्ड विद गुड ऑर्डर्स बिकॉज क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, सर्विस देना है, तो ऑर्डर्स रहेंगे सर। मेरा सवाल पिराज साहनी से है। पिराज साहनी को अभी तक बोलने का मौका नहीं मिला है। मैं सबसे पहले पिराज वेलकम करूंगा। यू आर द यंगेस्ट किड ऑन द ब्लॉक। आई एम द यंगेस्ट, यू आर द यंगर वन। या सो पिराज, आप लैमिनेट का वर्क करते हैं, आप बॉम्बे के साथ जुड़े हुए हैं। यस। लैमिनेट में बहुत सारे फोल्डर का काम रहता है। आज की डेट में एक लैमिनेट का स्पेशलाइज वर्क करने के नाते क्या ऐसा लगा कि गलत पंगा ले लिया यार, इतने सारे फोल्डर्स, इतनी सारी शीट्स, डेड स्टॉक, इसका डर सताया क्या 2 महीने में? नहीं सर, अब तक तो नहीं सताया, ना कभी सताएगा। इसलिए बीइंग अ सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर, तो मैं इसी में पला बड़ा हूँ और इसी में मुझे यही आता है। तो डेड स्टॉक, मिनिमम डेड स्टॉक कैसे रखना है, वो सब चीज सीखते गए हम अपने बिजनेस में। बाहर गांव से डिमांड आई क्या? सॉरी, बाहर गांव से वर्सेस बॉम्बे से या आपके आसपास अपार्टमेंट से कोई काम? देखिए सर, डिमांड तो नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी मैं सीधा पूछ रहा हूँ, टायर 2 टायर 3 गांव से डिमांड आई क्या? मैं आपको पहले थाना सिटी और सराउंडिंग का बता दूं। वी आर स्टिल अंडर टोटल लॉकडाउन। मतलब जो लॉकडाउन होता है, मेजर लॉकडाउन हमारे बॉम्बे सिटी में ही है, जो कि बहुत मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे बिजनेस के लिए। और देयर आर 2 मेन इश्यूज। एक, ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उसके आ रहे हैं जो एकदम ही अटका हुआ है, जिसका काम चालू है और जिसके पास कारपेंटर है जो काम करेगा, भले छुप के करे या कैसे भी करे, लेकिन काम करेगा।
तो वो थोड़ी बहुत इंक्वायरीज आ रही है, लेकिन वो ना के बराबर है। दूसरा जो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी है वो है अपने लेबर्स को संभालना। ये लॉकडाउन 1, 2, 3 और ये जो भी 4 हो गया है, इससे जो बचे कुछ लेबर्स है वो भी जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए अभी ये हो गई है कि हम अपने लेबर को कैसे संभालें, जिसके लिए भले कुछ भी करें वो आखिर अपना घर जाना चाहता है, और अभी सीन ऐसा है कि वो अभी जाएगा तो कभी आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। धन्यवाद पीरज, वेरी नाइसली सेड। आज डिस्ट्रीब्यूटर के लिए समस्या लेबरों का जाना है। वो अगर लेबर नहीं रहेंगे तो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। ये बात लगभग सभी ने इस पैनल पर सहमत हुए हैं कि अगर माइग्रेंट वर्कर्स, लेबर्स इसी तरह से जाते रहे तो आने वाले 2 महीने हमारी वुड पैनल इंडस्ट्री के लिए बहुत भारी साबित होने वाले हैं। मैं कमल शाह जी से एक चीज और पूछना चाहूंगा कि कमल शाह जी, जब लेबर चली जाएगी, साइट पे डिमांड नहीं रहेगी, तो एज ए रिटेलर पीछे से पैसा वो आगे कैसे देगा? ये चेन मेंटेन कैसे करेगा? ये एक्चुअली एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, जिसका किसी के पास उत्तर देना हाल की डेट में मुश्किल है। लेकिन आत्मनिर्भर जो भारत अभियान चल आया है और आप एक प्रोफेशनल सीए हैं, मैं ये दोनों को मिला के सवाल का उत्तर चाहता हूं आपसे। हाँ, तो देखिए, जिसका इंटेंशन है पैसा देने का, चाहे 20%, 25%, 30%, 40% पेमेंट कर रहे हैं सब रिटेलर या होलसेलर टू द फैक्ट्रीज, बिकॉज द फैक्ट्रीज विदाउट मनी फ्लो they have got lot of other issues. They have to maintain their labor, factories, electricity, raw material and so many other things, wages. तो अगर डे टू डे थोड़ा बहुत भी पैसा नहीं आएगा तो उनका काम कैसे चलेगा? तो ये हर एक रिटेलर की जवाबदारी बनती है कि रुपये में से एटलीस्ट 25%, 30%, 40%, 50% तक पेमेंट रोटेशन में देते रहे। और यहाँ पर जो उनका काउंटर है, मैं बेंगलोर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आई कैन इमेजिन द in total lockdown, it is impossible for them to generate any revenues unless there are good customers like corporate customers who can do RTGS and complete the payments. Whereas in Bangalore, since we have started some level of sale, थोड़ा बहुत गाड़ी चलते ही रहेगी, फुल फ्लेज नहीं चलेगी, तो परचेजिंग भी थोड़ा कम होगा, सेल भी कम होगा, लेकिन गाड़ी चलती रहेगी। ऐसे नहीं है कि पेमेंट भी कम होगा? पेमेंट डेफिनेटली कम होगा। तो क्या पीछे जो पुराना उधार 6-6 महीने का है वो डेड या नियर टू डेड या नियर टू स्टॉप हो जाएगा? देखिए, हर एक सिटी में 5, 10, 15, 20% तो कस्टमर ऐसे होते हैं कि दे वुड लाइक टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड दे मे नॉट पे एनीथिंग एट ऑल। कि ये बहाना बनाएगा, मैं अभी बाहर का हूँ, मैं इधर फंसा हुआ हूँ, आई एम नॉट इन बैंगलोर, लॉकडाउन खोलने दो, आपको ये पूछना भी नहीं चाहिए। बट हु वांट टू डू पॉजिटिव बिजनेस आगे जाके, उसको भी संबंध रखना है, बिकॉज दे ही ऑल्सो वांट्स मटेरियल इन फ्यूचर। प्लस उसकी नीयत भी साफ है कि नहीं, हमको चीटिंग नहीं करना है, जो पैसा हमको देना है मार्केट में वो तो देना ही है, आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। वो फाइनेंस कहाँ से लाएगा? देखिए, फाइनेंस है ना, वो अपनी तरह से और थोड़ा मेहनत करेगा, कस्टमर से एडवांस लेगा, या तो कस्टमर होगा वो उसका रोटेशन करेगा। अभी जो रोटेशन रुक गया है पीछे की साइड, क्या कहीं जो अभी जो स्कीम अनाउंस हो रही है, ऑल्दो उसकी डिटेलिंग नहीं आई, क्या एक रिटेलर को आगे बढ़ के लोन लेना चाहिए? आप क्या एडवाइस करते हैं? सवाल सीधा है सर। आज की डेट में बैंक से ये जो लोन मिलेगी आपको, बैंक से मिलेगी। बैंक 1 रुपया भी इंटरेस्ट में आपको डिस्काउंट नहीं दे रहा है, वो खाली 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने का समय देगा आपको। बाकी ये जो स्कीम है, इट इज़ मेनली फॉर फेवरिंग द इंडस्ट्रीज, MSMEs जो बोलते हैं, माइक्रो लेवल, मीडियम एंड मैक्रो लेवल, ये जो सब बड़ी इंडस्ट्रीज है उनको फायदा है। रिटेलर या ट्रेडर्स को इसमें से अब तक जो डिटेल आई है, जहाँ मैंने 1-2 बैंक से भी बात की जस्ट टू नो व्हाट इज देयर फीडबैक, तो द ओनली थिंग दे कुड टेल इज कि अगर आपकी समझो एग्जिस्टिंग लिमिट है 1 करोड़ की, तो एक 20% यू कैन गेट फॉर 2 years एज a term loan at a reduced rate of interest of say 8%, 8.25%.
but whether you can afford to pay even 8%, that you have to think कि उतना margin है कि आज की डेट में कि after paying the overheads, when pay the interest, after all you have to repay the loan after 2 years. So these are the questions which then individual have to. तो मैं ये सवाल मैं किरण जी से शिफ्ट करूंगा। किरण जी, हाँ किरण जी, हाँ, सिचुएशन ऐसा है कि अभी जो स्लो डाउन है, तो मैं एडवाइस करता हूँ ऐसे रिटेलर को कि पैसा बोरो नहीं करना चाहिए, सिचुएशन को वॉच करना चाहिए, और ये सिचुएशन कितना टाइम चलता है ये हमको वॉच करके काम करना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं रिटेलर को ये भी एडवाइस करूंगा कि अपने पास जो इन्वेंट्री है उसको 5-10% प्लस माइनस करके उनको एनकेस करके लिक्विडिटी जनरेट करो, न कि आप बोरो करो, क्योंकि आगे स्लो डाउन कितना दिन चलने वाला है हमें पता नहीं है। और जितना अगर समझो 3-4 महीने के बाद अगर ये मार्केट स्लाइटली पिकअप होता है, कोरोना थोड़ा कम हो जाता है, कोरोना वायरस का इफेक्ट, उसके बाद मार्केट अगर पिकअप होती है, उसके बाद मार्केट को देख के आपको बोरो करना चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत वैल्यूएबल एडवाइस कि अगर इन्वेंट्री है तो उसे कम करें और लिक्विडिटी जनरेट करें। अगर इन्वेंट्री नहीं है यानी आपने माल बेच दिया है तो बाजार में मेहनत करें, दबाव बनाएं और पैसा लाएं, लोन से थोड़ी दूरी रखें। अगर आप ट्रेडर या रिटेलर हैं तो मैं ये सवाल लेकर नवीन पोद्दार जी के पास पहुंचूंगा। भैया ये बताएं, एक रिटेलर जिसने माल आगे साइट पे दिया है, अगर उस रिटेलर को पेमेंट नहीं आ रही है और आपके ऑफिस से फोन जाता है कि हमें पेमेंट करवाओ, वो क्या करे? उसके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? नहीं, हम समझे नहीं। रिटेलर अगर माल दे और साइट से पेमेंट नहीं आए तो मुझसे माल मांगेगा कि पेमेंट मांगेगा? नहीं, आप उससे पेमेंट मांग रहे हैं पुराने माल का, लेकिन वो कह रहा है कि मेरी साइट से पैसा नहीं आ रहा है, तो क्या करे वो रिटेलर? आपकी क्या एडवाइस है उसके लिए? अच्छा कस्टमर है तो हम जरूर सपोर्ट करेंगे और जितना हो सके उतना माल देंगे उसको। और अच्छे कस्टमर की डेफिनेशन क्या है? वो तो हम अपना लिस्ट देख के, टाइमिंग देख के और पेमेंट देख के मालूम चलता है कौन अच्छा है कौन खराब है। यानी जिस रिटेलर ने डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ, कंपनियों के साथ रिश्ते बनाए हुए हैं, उसे निभाने के लिए आज डिस्ट्रीब्यूटर दोनों हाथों से खोलकर तैयार हैं। अभी एक टाइम ऐसा है कि हम लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा रिटेलर को। बैंक से पैसा नहीं लेना चाहिए उनको, ना किसी से ब्याज में। हम लोग ही सपोर्ट करेंगे और ठीक कर सकते। यानी ये बहुत बढ़िया सवाल है कि आज जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो संकट मोचक है, फैक्ट्री वालों का भी और रिटेलर का भी। ललित जी, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप कितने सहमत हैं इस बात से? जरा आप जवाब दें। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे कमल जी ने कहा कि हमको लोन से लेके काम नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, अगर वो अगर डीलर, अगर वो रिटेलर अगर पैसा नहीं दे पा रहा है, किसी को भी प्रॉब्लम है, तो उसको सबसे फर्स्ट तो उसको ये वेट नहीं करना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटर उसको फोन करे। उसको पहले ही उसको अपने आप को खुद को उसको अप्रोच करना चाहिए, उसको अपनी स्थिति बतानी चाहिए। और अगर वो पेमेंट नहीं दे पा रहा तो उसको टोटल आप बंद मत करो, थोड़ा बहुत पेमेंट आप उसको देते रहो, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। आप टोटली बंद कर देते हो तो बहुत डिफिकल्ट है। यानी आप भी ये कहते हैं कि हर डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया का जो भी सुन रहा है और हर वो रिटेलर जो सुन रहा है, उसके लिए एक अच्छा मैसेज ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर लोग इन जनरल, अगर आपने रिश्ते अच्छे बनाए हैं, वो आपका साथ देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। किशोर मुत्था जी, पूना से। पूना में दोनों तरह की मार्केट है, रिटेल भी और होलसेल भी। क्या ओईएम्स को माल देते हैं आप? ओईएम्स को देते हैं हम लोग। हाँ, अगर ओईएम्स आपको पेमेंट नहीं देंगे तो क्या आप मटेरियल ऐसा ही रिश्ता बनाए रखते हुए देंगे? नहीं सर, देखो हमने जैसे लॉकडाउन जैसे भी स्टार्ट हुआ तो काफी ओईएम्स को हमने मतलब व्हाट्सएप भी किए, लोगों को फोन भी किए, लेकिन आज भी जैसे कल भी 2-3 ओईएम से बात कर रहे थे, वो बोलते हमने अभी तक चालू ही नहीं किया तो कैसे पेमेंट देंगे आपको। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके जैसे जितनी भी हमारी ब्रांडेड कंपनियां हैं, जैसे ग्रीन, सेंचुरी, ये लोग बहुत बार क्या होता है कि जो बड़े बड़े ओईएम्स है उनको डायरेक्ट भी दे लेते, और डायरेक्ट देने के बाद में जो बचा हुआ रहता है अपने पास सेल, वो पुणे में हमारे अपने डिस्ट्रीब्यूटर के या डीलर को मिलता है। लेकिन हमने आगे जाके देखा है कि जो ओईएम्स को मटेरियल हमने दिया है, उन्होंने पेमेंट का कोई भी सपोर्ट नहीं किया। हमें देखा तो हमने अगर हमारे पास 3% हमारे पास अगर पेमेंट आई है, हमारे बैंक में आई है, तो उसमें से 70% हमारे डीलर ने दी हुई है, 20% इंडस्ट्री वालों ने दी है और 10% हमारे कस्टमर ने दी है।
ओईएम के यहाँ से कोई भी पेमेंट हमारे पास आया ही नहीं है। तो आगे जाके हम लोग ये सोचेंगे कि अगर जब तक वो लोग पीडीसी नहीं देंगे या तो आरटीजीएस नहीं करेंगे तब तक हम ओईएम को मटेरियल नहीं देंगे हम लोग। बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया है, जिसका मैं समाधान राकेश कोखानी जी जो ओईएम वाले हैं, मैं उनसे स्पष्ट पूछना चाहूंगा कि क्या ओईएम से 1-2% की भी उम्मीद नहीं कर सकते थे? इन्होंने तो बोला कि कुछ आया ही नहीं। डेफिनेटली करनी चाहिए, और मैं ऐसा मानता हूं कि गुडविल बनता है राइट टाइम पे पेमेंट सप्लायर्स को देने से। मार्केट में पेमेंट जैसे इस लॉकडाउन में इन जनरल आपसे तो मैं पूछ नहीं सकता इस सवाल को, क्योंकि पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, कोखानी जी अपने बारे में खुद कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन और इन जनरल सबके लिए बताइए कि क्या ओईएम को पेमेंट देना चाहिए था और दिया? डेफिनेटली देना चाहिए था, भले ही वो पार्शियली दे, कुछ दे, थोड़ा दे, देना ही चाहिए। इट हैज टू बी, अदरवाइज रोटेशन स्टॉप हो जाएगा सर। एंड आई होप कि आपने भी ये किया ही होगा। यस, डेफिनेटली पार्शियली दिया है, लेकिन यस हमको भी रिजर्व रखना पड़ता है। बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग वी आर नॉट अवेयर कि हमको पता नहीं है ये लॉकडाउन 1 महीने बाद कब खुलेगा, तो रिजर्व मेंटेन करते हुए हमको देना तो पड़ेगा ही सर। क्या आप लोग भी लोन कंसीडर कर रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत को कंसीडर सीरियसली कर रहे हैं? सर डेफिनेटली जो गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर किया है एमएसएमई के लिए, वो अभी डिटेल में समझना जरूरी है, बट थिंग्स आर रियली पॉजिटिव दिख रहा है कि सिनेरियो काफी अच्छा होना चाहिए। यानी निर्वाणा मॉड्यूलर से राकेश कोखानी जी का कहना है कि हम अपना रिजर्व रखते हुए ओईएम्स को पेमेंट देना चाहिए, लेकिन किशोर भाई ने कहा कि उन्हें पेमेंट नहीं मिली, और ऐसा मुझे लगता है मुस्कुराहटों से कि सभी लोग अंदर अंदर ही सहमत हैं। किरण भाई आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन दीपक छेड़ा जी से पहले एक सवाल पूछ लूं, बहुत आराम से बैठे हैं। दीपक भाई ये बताइए कि क्या अगले 2 से 3 महीने में रिकवरी संभव है, और अगर रिकवरी संभव नहीं है तो बॉम्बे में बहुत सारे लोग शोरूम किराए पर लेकर चलाते हैं, उनके लिए क्या कहना है? बम्बई में सर अभी आने वाले समय 2 से 3 महीने में रिकवरी बिल्कुल नहीं आएगी सर। पूरा उनका अपना मिस्त्री लोग सब गांव चले गए, काम सब रुक गया हुआ है। तो रिकवरी नहीं आएगी तो किराया कैसे जाएगा? किराया तो सर वो दे, ये 3 महीने का तो ले ही नहीं पाएंगे सर, और उन लोग को मतलब अपना छोड़ देना पड़ेगा। आप अपना स्टोर किराए पर चलाते हैं या गोडाउन, या आपने अपना खरीद रखा है? ऑल्दो ये पर्सनल सवाल है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा। गोडाउन मेरे सब भाड़े के हैं सर। तो क्या आप किरायों में कटौती करने की बात की आपने या कर रहे हैं? किए सर, 2 महीने का भाड़ा वो लोग नहीं लेंगे। अरे वाह, ये सभी देश के रिटेलरों के लिए अच्छी बात है कि वो अगर निगोशिएट करेंगे तो वो भाड़ा नहीं देंगे। सैलरी में भी सर क्या किया आपने अपने हेल्पर? आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने तो सैलरी बिल्कुल नहीं टच की होगी। सैलरी अभी तक सबको दे दी है सर। हाँ, मैंने कटौती तो नहीं की होगी, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक नीचे के लेवल के होते हैं। जी सर। किरण भाई, एज ए रिटेलर, बट लार्ज रिटेलर, आपके यहाँ बहुत सारे ओवरहेड्स हैं, आप लोगों ने सैलरी को कैसा रखा सिस्टम? देखो अभी तक तो सिचुएशन को देखते हुए हम लोगों ने सबको सैलरी दी है, बट आप केस टू केस देखेंगे तो जैसे मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चर के अपने हर्डल्स अलग है, उनके फाइनेंशियल चैलेंजेस अलग है, होलसेलरों को अपने चैलेंजेस अलग है। बट एज ए रिटेलर मैं ऐसा समझता हूं कि अगर अपना हाथ चलता है तो अपने को उनको सैलरी देनी चाहिए, क्योंकि ये पेंडेमिक जो है ये हमें लगता है ये टेम्पररी है, बहुत लंबा पीरियड के लिए नहीं है। फिर भी 2 या 3 महीना तो हमको कम से कम उनको सपोर्ट करना चाहिए। 3 महीने के बाद अगर हमको लगता है कि आगे ये और ज्यादा स्लो डाउन रहेगा और बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहेगा, तो उस वक्त हमको सोचना चाहिए। बट जब तक हमारा हाथ चलता है हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए। इसका कारण ये है कि जितने भी लेबर एम्प्लॉयज है वो सब अपने ऊपर डिपेंड है, उनकी दूसरी कोई इनकम नहीं है, दूसरी कोई सपोर्ट नहीं है। और एज ए एथिक्स में एक बात बताता हूँ, हम लोग चैरिटी के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, नाम के लिए दूसरी जगह चैरिटी करती है, तो व्हाई नॉट चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। वेरी वेरी नाइसली मेड। स्पेशली जो पटेल कम्युनिटी है और गुजरात की कम्युनिटी है, ये लोग बहुत अच्छी चैरिटी करते हैं। हमारे यूपी वाले तो बिल्कुल ही नहीं करते, सब देते ही रहते हैं। लेकिन मैंने ये जरूर देखा है गुजरात महाराष्ट्र में चैरिटी दबा के की जाती है, और चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, यानी जितनी अच्छे से सैलरी के सपोर्ट दिए जा सके पुराने ट्रस्टेड लोगों को जरूर देना चाहिए। कमल जी, एक सवाल आपसे है,
बेंगलोर वर्टिकल सिटी है, बहुत सारे फ्लैट्स बनते हैं वहां। क्या लास्ट 2 सालों में रेडीमेड फर्नीचर का चलन बढ़ा और क्या आप रिटेलरों पर खतरा देखते हैं? जैसा कि राकेश जी ने कहा कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है रेडीमेड फर्नीचर की शुरुआत। आपको क्या लगता है रिटेलरों का बिजनेस आने वाले समय में कोरोना की वजह से और कॉर्नर में जाएगा? रेडीमेड फर्नीचर का बिजनेस अच्छा चल रहा है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ट्रेड। आवर ट्रेड इज ऑल्सो ग्रोइंग और फर्नीचर का ट्रेड भी ग्रो हो रहा है। मॉड्यूलर का बिजनेस भी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट इज स्टिल ग्रोइंग वेरी फास्ट। अपना जो यंग पॉपुलेशन है, द डिमांड इन इंडिया इज येट टू पीक। वी हैव नॉट स्टेबलाइज, वी हैव स्टिल नॉट बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। तो अपने यहाँ तो हर तरह की डिमांड रहेगी, रेडीमेड फर्नीचर की रहेगी। हो सकता है कि आपके ये कोविड के कारण थोड़े दिनों के लिए, लाइक फॉर फ्यू मंथ्स, एज कारपेंटर को घर पे नहीं बुलाने का अगर डर किसी को लगता है, तो हो सकता है कि रेडीमेड फर्नीचर लेके टेम्पररी काम चला ले। बट एज यू सेड, यू नो, द पीपल स्पेंडिंग मनी इन एन इंटीरियर ऑफ इवन ए स्मॉल फ्लैट इन मुंबई, 500 स्क्वायर फुट से लेके 2000 स्क्वायर फुट या 3000 स्क्वायर फुट का फ्लैट, दे वुड लाइक टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन देयर इंटीरियर्स। हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग लग्जरी प्रोडक्ट में कोई हाथ नहीं डालेगा। जो प्रीमियम प्रोडक्ट है, जैसे प्रीमियम एकदम कॉस्टली विनियर होता है, कॉस्टली लैमिनेट होती है, मेटल लैमिनेट होती है, जो हाईलाइटर्स बहुत कॉस्टली होता है, पीपल विल से नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेट अस स्पेंड ऑन बेसिक नेसेसिटीज एंड कीप कैश एंड रिजर्व। अभी क्या है, सब लोग रिजर्व स्ट्रेंथ बना के काम करना चाहेंगे। ओवरहेड्स बाय वे ऑफ खास करके बैंक की लोन और इंटरेस्ट, ये तो सबसे पहले, ये बहुत खतरनाक चीज है और इससे सर्कल। So my question was basically that will ready-made furniture benefit after corona? You said yes, in short term it will benefit. ये short term में benefit कर सकता है, लेकिन long term में कहीं ना कहीं वापस राह वहीं आएगी। रिटेलर की अपनी जगह होगी और फर्नीचर वाले की अपनी जगह होगी। किरण भाई, क्या आपने लास्ट 2 सालों में बेंगलोर में काफी बिजनेस ऑनलाइन रिटेलरों पे शिफ्ट हुआ है, आपने कोई इम्पैक्ट देखा है? क्या ऑनलाइन पे? नहीं, आपने कोई रिटेल शोरूम सेल्स पर कोई इम्पैक्ट देखा है रेडीमेड फर्नीचरों की ग्रोथ के चलते? या लास्ट 15 मंथ्स में हमने थोड़ा ग्रोथ को रुका हुआ देखा है रिटेल लेवल पे। इसका कारण क्या है कि हमारा बेंगलोर है ना, ये आईटी बेस है, हमारा इधर मेजर बिजनेस आईटी की वजह से होता है। तो ये आईटी में सबसे ज्यादा यंगस्टर्स है। अभी समझो को हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि मैं 6 से 8 महीना लीव लेके मेरे घर का फर्नीचर बनाऊं। तो डेफिनेटली वो लोग मॉड्यूलर पे ज्यादा शिफ्ट करते हैं, मॉड्यूलर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ, हमारा ग्रोथ लास्ट 15-20 मंथ से काफी रुका हुआ है, मगर मॉड्यूलर का बिजनेस भी उसी लेवल पे, उसी स्पीड में काफी ग्रो किया। हमारा जितना ग्रो करना चाहिए उतना ग्रो 15 मंथ्स में नहीं हुआ। यानी रिटेलरों के लिए कठिन वक्त चल रहा है, ड्रॉप हो रहा है सेल। यस, इसका कारण क्या है कि जैसे बड़े बड़े अपार्टमेंट में टाइमिंग बहुत है, जैसे टाइम बाउंड काम करना चाहिए, तो 5 से 6 घंटे के ऊपर उनको काम करने नहीं मिलता है। तो जो प्रोजेक्ट 4 या 5 महीने में कंप्लीट होना चाहिए, वो लगभग 7-8 महीना लेता है। तो आजकल लोग बहुत इससे कंटाल गए हैं कि भाई नहीं, हमको ये 8-8 महीने का ये लॉन्ग टर्म, ये पंचवर्षीय योजना नहीं चाहिए। तो यंगस्टर्स में इतना पेशेंस नहीं है, तो वो लोग ज्यादातर मॉड्यूलर पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके शिफ्ट हो रहे हैं, ताकि मॉड्यूलर 45 डेज में उनका काम हो जाता है। धन्यवाद। नवीन जी, क्या रिटेलरों के ऊपर आप भी इस तरह का कमजोरी देख रहे हैं, सेल में घटत देख रहे हैं, कमी देख रहे हैं रेडीमेड फर्नीचर के चलते? एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप क्या देख रहे हैं? खतरा है रिटेलरों के लिए? अनम्यूट करना होगा आपको, अनम्यूट करना होगा जी। ऐसा मुझे नहीं लगा, क्योंकि मेरे हिसाब से कोरोना वायरस आने से पहले बहुत अच्छा रिटेलरों का सेल था। ये अभी रुका है और किसी सेल में कोई कमी नहीं था। और जो आप मॉडल क्रिएचर का बात कर रहे हैं, उनका भी सेल अच्छा, डिटेल में कोई कमी सेल में नहीं आया। आपका ये कहना है कि रिटेलर अपनी जगह काम करते रहेंगे, यानी इस पैनल पर 2 डिवाइडेड व्यूज हैं। कमल जी कहते हैं कि रेडीमेड फर्नीचर रहेगा लेकिन उसकी अपनी मार्केट है, और हमारी अपनी मार्केट वापस आ जाएगी कोरोना जाने से।
किरण गाला जी कहते हैं कि नहीं, रिटेल इंपैक्ट हो रहा है रेडीमेड फर्नीचर की ग्रोथ से, क्योंकि छोटा परिवार जो आईटी सेक्टर से है उसको इतना समय नहीं देना है। नवीन जी और कमल जी एक तरफ है और किरण गाला जी का इंपैक्ट एक तरफ है। सभी अनुभवी हैं अपने अपने सेक्टर में। किशोर भाई पूना से, किशोर भाई आप भी पूना में है, वो भी आईटी सिटी है, क्या वहां रेडीमेड फर्नीचर ग्रो कर रहा है? नहीं, यहाँ पर जैसे अगर हमने एनालाइज किया तो जैसे रेडीमेड फर्नीचर, तो रेडीमेड फर्नीचर का अलग सेगमेंट है, और जो हमारा जो रॉ मटेरियल का जैसे प्लाईवुड, विनियर, लैमिनेट, उसका सेगमेंट अलग है। सभी लोग जैसे कोखानी जी दिखाई नहीं दे रहे, राकेश जी दिखाई नहीं दे रहे, निर्वाणा मॉड्यूलर से मुझे उनकी जरूरत थी इसके बाद सवाल में, प्लीज उनको ब्रिंग बैक करें जी। सॉरी किशोर जी डिस्टर्बेंस के लिए। नहीं, यहाँ पर भी आईटी का है, लेकिन उसका जैसे मार्केट है, रेडीमेड का मार्केट अलग है, और जो हमारी जो रॉ मटेरियल है जैसे प्लाईवुड, लैमिनेट, विनियर, उसका पूरा मार्केट अलग है। तो दोनों साइड बाय साइड में ग्रो हो रहा है। लेकिन अगर हम रिसेशन देखेंगे तो दोनों जगह रिसेशन है। लास्ट 1 ईयर से लगभग हम देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर से रिसेशन ही है मार्केट के अंदर। अगर हम लास्ट का क्वार्टर देखेंगे, जैसे हमारा जनवरी, फरवरी और मार्च, वो स्लो डाउन था पूरा, और उसके पहले भी थोड़ा स्लो डाउन था। तो पूरा मार्केट जो है हम लोग ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते कि ओनली सिर्फ कोविड के पीरियड के लिए, अगर हमने कोविड का पीरियड कंसीडर किया 6 मंथ्स के लिए, अगर जिसको जरूरत है वो तो रेडीमेड ही खरीदा, बिकॉज कारपेंटर नहीं है, कारपेंटर अपने अपने गांव चले गए, लेबर नहीं है, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है 2 से 4 जो आफ्टरनून के अंदर वो छुट्टी लेनी पड़ती है कारपेंटर को, उसके वजह से। और अगर आप देखेंगे तो पूरा एनालाइज किया हमने, ऐसे भी रॉ मटेरियल लेके प्लाईवुड जो यूज करने वाले कस्टमर है वो 25% ही है मार्केट में, और बाकी का जो शेयर है वो मार्केट में 25% बिल्डर बना के देता है, 25% ओल्ड फर्नीचर यूज करता है, 25% मॉड्यूलर या रेडीमेड फर्नीचर कस्टमर लेके आता है। तो हमारी मार्केट जो है वो ऐसे इफेक्ट नहीं होगी, पूरा रिसेशन होने के वजह से दोनों होगा। लेकिन हम आगे जाके देखेंगे कि हमारी जो इंडियन वे ऑफ फर्नीचर बनाने की जो ट्रेंड है, जैसे जो ट्रेडिशनल वे ऑफ फर्नीचर बनाने की, घर पे मटेरियल, जैसे पहले जमाने में था कि जैसे कपड़ा लाते थे और दर्जी को लेके आते थे और कपड़ा सीते थे, ऐसे वो ट्रेड जो है हमारी मार्केट के अंदर आज भी चालू है और आगे भी रहेगी। अगर हम देखेंगे, अगर आप पूरा जो, अगर हमने इंपोर्ट का अगर हमने पूरा चार्ट देखा है, तो जैसे रशियन बर्च प्लाईवुड है, चाइनीज के कुछ प्लाईवुड है, मलेशियन प्लाईवुड है, आज भी उतनी ही क्वांटिटी में इंपोर्ट हो रही है इंडिया के अंदर। अगर हम यमुनानगर के सेल्स देखेंगे, केरला के सेल्स देखेंगे, तो उसमें कोई कम नहीं हुआ है, वो बड़ा ही है। तो इसका माना क्या है कि रेडीमेड अलग सेगमेंट है और हमारी जो प्लाईवुड इंडस्ट्री वो अलग सेगमेंट है। हाल फिलहाल 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो लेबर नहीं है मार्केट के अंदर, उसके लिए फर्क पड़ेगा। लेकिन आगे जाके ये वापस ट्रेंड जो है ट्रेडिशनल वे ऑफ फर्नीचर वो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज आज भी आर्किटेक्ट वो मानता है। मैं समझ गया कि ये रेडीमेड फर्नीचर अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन लेगा, ग्रोथ करेगा, लेकिन कई ऐसे एरियाज है जहां पर कस्टमाइज फर्नीचर प्लाईवुड रिटेलर के द्वारा सप्लाई किया हुआ कारपेंट्री फिक्स फर्नीचर अपनी जगह बनाकर ही रखेगा। एक तेजी I would like to come in for this, एक सेकंड सिर्फ। तो जो किशोर भाई ने कहा है मैं उससे बहुत सहमत हूँ, लेकिन मुंबई की मेंटालिटी अभी चेंज हो रही है। सी द पीपल यार, अभी वो लोग सब ना सैलरीड क्लास से आ रहे हैं, तो जो शिफ्ट है ना कि ये मिस्त्री को घर पे नहीं लाना, ये नहीं करना, ये आगे के टाइम पे, ये कोविड पीरियड के लिए ये बढ़ेगा, ये माइंड शिफ्ट होएगा ही कि घर पे मिस्त्री को लाके बुलाना और रेडीमेड मंगवाना। तो द रेडीमेड इंडस्ट्री इज गोइंग टू ग्रो। सो ये अभी हमारे पे कि हम अपने कॉन्ट्रैक्टर्स और कारपेंटर्स को कैसे समझाएं कि वो ये रिटेल मार्केट को इस पे आने वाले हैं, ये टॉपिक पे। थैंक यू पिराज। मेनली क्या था अभी तक की पूना में, बैंगलोर में एक सेगमेंट है जो ये कहता है कि रेडीमेड फर्नीचर की ग्रोथ रिटेलर के कॉस्ट पर हो रही है, लेकिन एक सेगमेंट कहता है कि नहीं, रिटेलर की अपनी जगह बनी रहेगी और रेडीमेड फर्नीचर अपनी जगह बना रहेगा। मैं वापस आपके पास दोबारा आऊंगा, कुछ और सवाल मैं पढ़ना चाहूंगा। इस बीच में मैं टेक टीम से चाहूंगा कि एक बार जो वर्गो ग्रुप स्पॉन्सर है उनका एक कोई वीडियो है वो जरूर प्ले करें, तब तक मैं क्वेश्चंस पढ़ लूं। एक हाफ ए मिनट का वीडियो है, तब तक कोखानी जी को भी ज्वाइन कराएं। और इफ टेक टीम आर रेडी, कैन यू प्ले द वीडियो, आई विल बी थैंकफुल। इन द मीन टाइम, टिल दे आर प्लेइंग द वीडियो, एक सवाल आप सभी जेहन में लेकर रखें अपने साथ कि क्या, बहुत अच्छा सवाल पूछा है किसी ने, कमलेश शर्मा जी ने पूछा है कि वेयर कैन वी सेंड आवर सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ ऑनगोइंग सिचुएशन।
दूसरा सवाल किसी ने बहुत अच्छा पूछा है कि हम क्यों नहीं, अगर 6 महीने माइग्रेंट वर्कर नहीं आते, गौतम बजाज जी हैं, हम 6 महीने अगर वर्कर नहीं आते तो क्या होगा? हमारे पास कोई स्ट्रेटजी है? हमारे पास कोई समाधान है? मुझे नहीं लगता कि 6 महीने वर्कर नहीं आएंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि 2 से 3 महीने में चीजें काफी कंट्रोल में होंगी और मोदी है तो मुमकिन है का नारा जरूर वापस सफल होगा। टेक टीम, if you are ready, you can play the video and I would like to thank Virgo Group and others again. इसके बाद सेकंड पार्ट जिसमें हम कंक्लूसिव फटाफट सवाल पूछेंगे। मैं सबसे बड़ा सवाल, हम यहां से मैनेज कैसे करें धंधा? अभी भी मुझे इसका उत्तर नहीं मिला। रेडीमेड फर्नीचर का तो उत्तर मिला कि ये आएगा, विराज एग्री करते हैं कि ये आएगा, लेकिन अभी भी उत्तर नहीं मिला कि पैसा कहां से आएगा। पैसे का उत्तर अगर लोन नहीं लेते हैं तो सिर्फ लिक्विडिटी बढ़ेगी स्टॉक घटाने से, ये उत्तर मिला। 1-2 उत्तर और बाकी हैं, मैं इसके अगले भाग में वो उत्तर लेना चाहूंगा। टेक टीम, आर यू रेडी टू प्ले द वीडियो? कैन प्लीज प्ले द वीडियो। प्रगत जी जी, पैसा इन्फ्यूज तो करना पड़ेगा। जैसे बैंगलोर के डीलरों ने बोला है कि पैसा लोन नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल से जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, आप देख लो डिस्ट्रीब्यूटर को माल कौन देता है? जो पुरानी फर्म है, जैसे 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, उसी लोगों को मटेरियल मिलता है। जैसे आप देखेंगे ब्रांडेड, जितने भी ब्रांडेड की कंपनियां है, जैसे ग्रीन, सेंचुरी, एक्शन, बाइसन और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो लोग क्या देखते हैं कि पुराना इनका बैकग्राउंड क्या है, और उसके बाद में वो लोग क्रेडिट पीरियड देते हैं हम लोगों को। तो जैसे हमने अगर मैन्युफैक्चरर का पूरा पैसा, अगर हम तो मानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास पैसा पड़ा है तो वो तो आरबीआई में पड़ा है, लेकिन हमारा पैसा रिटेल के पास पड़ा है, वो हमारे को बहुत दिक्कत है, हमारे को बहुत प्रॉब्लम है। हम तो कैसे भी करके हमारा रिजर्व पैसा जो भी पड़ा इधर उधर, हम लाके उसको कैसे भी करके उसको कंप्लीट कर देंगे। एक बार चाहेंगे कि इनका पूरा अकाउंट क्लीन करेंगे। यमुनानगर वाले, केरला वाले, जितने भी ब्रांडेड लोग हैं, जितने भी ब्रांडेड फैक्ट्रियां है, जितने भी ब्रांडेड है, तो उसको हम लोग पेमेंट इमीडिएटली दे देंगे। लेकिन हमारा जो पैसा मार्केट से आना है, उसके लिए हमारे को बहुत दिक्कत है। प्रगति जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा एक चीज, ये जो हमारा बिजनेस है वो एक गाड़ी जैसा है। इस गाड़ी के 4 पहिए, एक जो आपका कस्टमर है, फिर रिटेलर, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर, फिर आपका मैन्युफैक्चरर। ये गाड़ी चलने के लिए जो ईंधन होता है, जो पेट्रोल चाहिए, वो है पैसा। और अगर ये पैसा कोई भी एक सेगमेंट से नहीं आता है तो ये चक्का जाम करने वाला ही है। तो इसलिए मेरी सबसे निवेदन है, आपके पास जितना हो, जैसा हो, आपको कैश इनफ्लो करना ही पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हम भी कर रहे हैं 20%, 25%, 30%, जितना भी। वैसे ही हर एक रिटेलर को अपना लिक्विडिटी क्रिएट करना पड़ेगा। हो सके तो लोन लेके करना पड़े या कैसे भी करना पड़े, लेकिन आपको मार्केट में पैसा घुमाना पड़ेगा। फिर जब तक ये पैसा घूमेगा नहीं, तब तक ये गाड़ी चलेगी नहीं, और गाड़ी चलेगी नहीं तो काम होगा नहीं। और ये गाड़ी का ईंधन सिर्फ पैसा है। थैंक यू। शानदार नीरज भाई, आपने तो कम समय में बहुत कुछ कह दिया और 4 पहिए बनाकर आपने सारी बात कह दी। टेक टीम जब भी रेडी हो आप बताइएगा। राकेश वीडियो चलाने के लिए, राकेश कोखानी जी जैसे ही अवेलेबल हो आए। मेरा सवाल उनके लिए पेंडिंग है। आज टेक्नोलॉजिकल इश्यूज बहुत हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। पैसे की जब बात होती है टेक्नोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं, पैसे की बात होती है तो मोदी जी भी आ जाते हैं। लेकिन मैं सबसे ये चाहता हूं कि एक मन में सवाल जिसका उत्तर विराज ने बहुत सुंदर दिया, कोई भी हो, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, कंज्यूमर या मैन्युफैक्चरर या ओईएम, बिना पैसे के गाड़ी नहीं चलेगी। हर आदमी पैसा इन्फ्यूज करे, जितना हो सकता है उतना करे, लिक्विडिटी घटा के करे, सॉरी स्टॉक घटा के करे या लोन लेके करे, लेकिन इन्फ्यूज जरूर करे। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो डिसएग्री करते हैं बेंगलोर से। विराज आपने ये कहा, लेकिन 2 डिस्ट्रीब्यूटर लोग जो एक तरफ ललित भाई हैं और एक तरफ नवीन भाई हैं, इन्होंने खुल के कुछ नहीं कहा। मैं अभी भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, खुल के कुछ कहिए। हाँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि ये बात हुई थी कि लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन सारा का सारा पैसा लोन के जरिए नहीं हो सकता है। आपके पास अगर कैपिटल को इन्फ्यूज करना है तो उसके बहुत सारे साधन हो सकते हैं। आज हमारे केस में भी तो मेरे पास तो बॉम्बे में तो पेमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, लेकिन यथाशक्ति जो भी कहीं से भी मैनेज करके मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, मैं अपने फैक्ट्री वालों को दे रहा हूँ। यही सेम चीज है, अगर जिस हिसाब से मैं भी थोड़ा आपको इन्फ्यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सेम पोजीशन आज फैक्ट्री वाले की भी है।
अगर फैक्ट्री वाला भी अपना पैसा कैपिटल इसमें इन्फ्यूज कर रहा है, अगर फैक्ट्री वाला ये संग से बैठ जाए कि मैं तो जो होलसेलर से पैसा आएगा मैं वही पैसा दूंगा, वो भी इन्फ्यूज कर रहे हैं, हमको करना ही पड़ रहा है। तो कहने का मतलब किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई को लोन लेना या चाहिए नहीं लेना चाहिए। आप लोन के अलावा भी तो आपके पास में कुछ स्पेयर मनी या कुछ किसी हिसाब से भी आप उसको ट्राई कर सकते हैं उसको करने के लिए। और थोड़ा सा भी मेरा ये भी विचार है, लेकिन नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा, चक्का तो बिल्कुल जाम हो जाएगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा एक चीज इसमें, जैसे दीपक छेड़ा जी का आप एग्जांपल लेंगे, उन्होंने बोला उनके पास 20 लाख आया, उन्होंने 50 लाख चुकाया। तो ये सीधा सीधा केस ये है कि ये हर एक पर्सन टू पर्सन पे वेरी कर, अगर आप करना चाहें तो आप जरूर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपको ये चक्का घुमाना ही है तो ही ये काम आगे बढ़ेगा, वरना दिक्कतें बहुत ज्यादा है आगे। अभी तो हमारे बॉम्बे में बिजनेस खुला भी नहीं है और फैक्ट्री वगैरह से सबका फोन आ रहा है, सब आ रहा है, तो सब अपने अपने व्यवस्था कर ही रहे हैं। तो इन्फ्यूज आपको पैसा करना ही है, चक्का घुमाना ही है। राजीव, आपको कोई सवाल पूछना है? आपकी अगर आवाज आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं इस बीच में। आपको भी एक बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ पूछिए अगर पूछ सकते हैं तो। ग्रेट, बहुत देर से ट्राई कर रहा था। मेरा रोल था शुरू में, हमारे जितने पैनलिस्ट थे उनकी एक प्रोफाइल हमारे पास थी और सबका इंट्रोड्यूस करना था। हालांकि शुरुआती दौर में प्रगत जी ने बहुत बखूबी तरीके से सबको इंट्रोड्यूस कर दिया और एक वीडियो हमें चलाना है अभी, उसका हम वेट कर रहे हैं। सवाल तो नहीं है आपका अभी? हेलो, नहीं, सवाल तो पूछ ही रहे हैं आप और सवाल सारे आ रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ एक नवीन जी से सवाल है। नवीन जी, ये 13 दिन हो गया कर्नाटका खुले हुए, कितना % सेल आ गई और क्या लग रहा है, ट्रेंड क्या लग रहा है? क्योंकि आप आपके पास 3000 डीलर हैं, आपको क्या ट्रेंड लग रहा है? देखिए, हमारा तो फर्स्ट 10 डेज तो 60-70% सेल था, मगर लास्ट 3 दिन से 50% सेल, और मेरे को लगता है आगे खराब ही है। मतलब क्यों, आखिर आगे खराब क्यों लग रहा है? क्या लेबर चली गई है इसलिए खराब लग रहा है या क्या रीजन है? लेबर मतलब यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, नया काम कोई भी नहीं करना चाह रहा है। जिनका जो थोड़ा मोड़ा काम बचा था वो कंप्लीट कर लिए, पर नया शुरू काम करने के लिए प्रोजेक्ट सब लोग वेट कर रहे हैं और मेरे ख्याल से 2-3 महीना लगेगा। मतलब अभी जो बढ़ा है, सेल जो बढ़ी है, वो जो पुराने प्रोजेक्ट चल रहे थे, काम चल रहे थे, उसमें बढ़ी है। ये ड्राई हो गया था, 45 दिन का जो छोटे छोटे गांव में माल नहीं था, उसके लिए सेल बढ़े। अच्छा, एक बात ये भी आ रही है कि जो रूरल मार्केट है, क्योंकि आप एक इकोनॉमिकल ग्रेड की काफी क्वांटिटी में प्लाईवुड सप्लाई करते हैं और रूरल मार्केट में कर्नाटका में आपकी पकड़ बहुत स्ट्रांग है, तो आप वहाँ कैसा फ्यूचर देखते हैं आने वाले टाइम में? फ्यूचर प्लाईवुड का अच्छा ही है सर, कोई खराब नहीं, बहुत बढ़िया। नहीं, डिमांड के हिसाब से, अगर प्रेजेंट डिमांड के हिसाब से देखा जाए, 3 महीना तो कुछ बोल नहीं सकते क्या होगा, मेरे को वक्त लग रहा है। 4-5 दिन और चल जाएगा, फिर और स्लो डाउन ही, अच्छा नहीं होना है। अच्छा, एक सवाल तो राकेश जी नहीं है, कमल जी आपसे एक सवाल है। हाँ बोलिए। कमल जी, आप डेकोरेटिव विनियर का बाजार कैसा देखते हैं? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, अगर उसको एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि डेकोरेटिव विनियर एक कहीं ना कहीं लग्जरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट है और उसके जो यूजर हैं वो हाई क्लास हैं और आप डेकोरेटिव विनियर काफी अच्छा करते हैं, तो उस कैटेगरी में आपका क्या मानना है? तो जैसे मैंने पहले ऑलरेडी बताया था कि इसमें जो प्रीमियम और जो एकदम कॉस्टली विनियर है उसका मार्केट तो काफ़ी टाइम पर थोड़ा स्लो रहेगा, क्योंकि आज जिसका काम पेंडिंग है वो तो ठीक है, वो तो जो उसका आर्किटेक्ट ने जो डिज़ाइन दी है वो हिसाब से काम लेके ख़त्म कर देगा। जो नया काम में कोई भी कॉस्टली आइटम, हाइलाइटर्स हो या विनियर हो या मेटल लैमिनेट हो या कॉस्टली लैमिनेट हो, ये कोई फिलहाल तो अगर उसका बजट होगा तो भी फिलहाल वो कंट्रोल करके रखेगा और इतना स्पेंड नहीं करेगा जब तक उसका फ्यूचर उनको क्लियर मालूम पड़े कि नहीं अभी आगे जाके समय एकदम नॉर्मल होने वाला है, कोविड का भय सबका मन से निकल जाएगा। आज एक बात समझ में आई, अभी खबर आई है कि जूम आज वर्ल्ड ओवर क्रैश हो गया और इसी वजह से हम लोग आज इतनी सारे टेक्निकल इश्यूज देख रहे हैं। और अगर आज जूम क्रैश हुआ और कल को सब कुछ ऑनलाइन में, इंटरनेट में कुछ लफड़ा आया, किसी देश का कहीं सैटेलाइट कुछ गया, समझिए कि हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भगवान न करे कि हम जितना भी ऑनलाइन और घर के अंदर बंद होके काम करें, ऑफलाइन करें, ऑफिस में ना जाएं,
भगवान करे कि हम उसी तरह से वापस पुराने दिनों में गले मिलने के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही मैं टेक टीम से कहूंगा कि वो वीडियो रन करें। और मैं फाइनल सवाल आऊंगा, रुकिए राजू जी, एक सेकंड दीजिए, मैं एक बार पुनः आऊंगा ताकि ये वीडियो रन हो जाए, नहीं तो ये कब टेक टीम कब रेडी होगी और कब नहीं पता, हमारे हाथ में नहीं है। सो आई वुड रिक्वेस्ट द टेक टीम टू कम इन द पिक्चर। एक इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं, अभी न्यूज चल रही है, लोग व्हाट्सएप भेज रहे हैं कि लॉकडाउन 31 मई तक एक्सटेंड हो गया। आप क्यों खुशी से शेयर कर रहे हैं या दुख से? नहीं, मैं तो दुख से शेयर कर रहा हूं, और दुख खुशी की बात नहीं है। एक जो सरकार ने जो भी फैसला लिया है सोच समझ के लिया होगा, इसमें कोई दुखी और खुशी की बात नहीं है। ये समय है ऐसा, और हमें आगे अपने आप को तैयार रखना है, हर मोर्चे पे तैयार रखना है। अब इसमें खुशी हो या गम हो, लेकिन सच्चाई है। सर हमें लॉकडाउन से प्रॉब्लम नहीं है, 31 मई तक भी हो गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट या लोकल लेवल की गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस दे। जैसे फॉर एग्जांपल आप हफ्ते में 2 दिन चालू कर सकते हैं, या आप हफ्ते में 3 दिन चालू कर सकते हैं, 4 घंटा चालू कर सकते हैं, 6 घंटा चालू कर सकते हैं, ताकि एक माइंडसेट है जो लेबर अभी रुकी हुई है वो रुकी रहे। जितना ये लॉकडाउन, जो कर्फ्यू वाला लॉकडाउन है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रिटेलर हो या होलसेलर हो उनकी दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। तो एक स्टेट का जो एक गाइडलाइंस आनी चाहिए वो एक प्रॉपर होनी चाहिए। हमारे बॉम्बे में ये इशू है कि हमें अभी तक प्रॉपर गाइडलाइंस अभी तक हर जगह के लिए आई नहीं है। ये इशू बॉम्बे में ही नहीं है, ये इशू कानपुर में भी है, ये इशू बनारस में भी है, ये इशू दिल्ली में भी है, ये इशू हर जगह है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पहले कोरोना हुआ भी नहीं था। इसी कोरोना में, इसी पेंडेमिक में हम सभी अपने अपने बहुत सारे नियम बना रहे हैं। हमारे यहाँ कभी भी कैश रिजर्व रखने की परंपरा ही नहीं थी, ज्यादातर हम लोगों ने ओवर ट्रेडिंग की हुई है। ऐसा जरा सा आया नहीं कि हमने नए प्लॉट और नई इंडस्ट्री के एक्सपेंशन किए हुए हैं। अब पहली बार मेरे होशो हवास में पहली बार मुझे भी ये समझ आया है और बहुतों को कि लिक्विडिटी रिजर्व, कैश रिजर्व उतना ही जरूरी है जितना सोना रखना। परंपरा के हिसाब से पुराने समय में माता पिता कहा करते थे, दादा दादी कहा करते थे कि घर में सोना, पीतल, फूल के बर्तन रखो, कब आड़े बगाहे गाहे बगाहे काम आए। किरण भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टेक टीम वीडियो नहीं चला पा रही इसलिए हम क्षमा मांगते हैं वर्गो ग्रुप और बाकी ऑडियंस, लेकिन अब जी हेलो we can't see Rakesh ji's video, but maybe he can talk. Rakesh ji, yes, can you hear me? you are there, I will come to you once, I will come to Kiran ji। Okay, बहुत सीधा सीधा सवाल है। कमल जी ने कहा लग्जरी प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, कम बिकेंगे। ये तो सबको समझ आ रहा है कि अगले 6-7 महीने लग्जरी प्रोडक्ट्स, महंगे प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। लेकिन ये बताइए, कॉमर्शियल स्पेसेस बेंगलोर में बहुत है और आप काफी सप्लाई देते रहे हैं फ्लोरिंग की, वॉल पैनलिंग की, कॉमर्शियल स्पेसेस की, आपको इम्पैक्ट दिखता है जोरदार इस पे? फिलहाल थोड़ा बहुत दिख रहा है, क्योंकि आईटी में क्या हुआ, वर्क फ्रॉम होम की वजह से काफी सॉफ्टवेयर कंपनी वो थोड़ा अपना ऑफिस स्पेस थोड़ा रिड्यूस कर रहे हैं। मगर साथ में जैसे मोदी जी ने अभी अनाउंस किया है आत्मनिर्भर भारत के लिए, तो एफडीआई में काफी इन्वेस्टमेंट बेंगलोर में दिख रहा है, तो उसकी वजह से शायद वो फुलफिल हो जाएगा। यानी रिटेल स्पेस में सेल भगवान भरोसे है। सरकार अगर पॉलिसी लाती है तो ऑफिस स्पेस में भी बढ़ोतरी आएगी और उसमें समय लगेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी आएगी तो होगा। मैं सभी को एक बात कहना चाहता हूं, कोरोना का समय बहुत गंभीर है, हम सभी बहुत कठिन परिस्थितियों में खड़े हुए हैं। नवीन जी ने सबसे अच्छी बात शेयर की, रिश्ते निभाते हुए, पुराना रिकॉर्ड देखते हुए व्यापार को आगे बढ़ाते जाना है। बाहर गांव से ऑर्डर आ रहे हैं, थोड़ा ही सही, पूरा नहीं सही, लेकिन ऑर्डर आ रहे हैं। ललित जी ने कहा कि पैसा जिसके पास जैसा भी है, लोन नहीं भी लेता है तो वो कैश रिजर्व रखा है, कुछ ना कुछ तो जरूर है, वो दे भी और ले भी, तभी गाड़ी आगे चलेगी। दीपक छेड़ा जी ने कहा कि रेंटल, जितनी भी रेंटल जगह है उनको निगोशिएट करेंगे तो वो छोड़ेंगे, अपना काम चलाने के लिए निगोशिएट करें और उन्हें छोड़ें। कमल जी ने कहा कि संभाल के चलने का वक्त है, संभाल के नहीं चलेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, संभाल के नहीं चलेंगे, उधार देते फिरेंगे या बहुत कर्ज ले लेंगे तो हम लोग ईएमआई या ब्याज नहीं भर पाएंगे। किशोर मुथा जी ने कहा इस पूरे पैनल में कि रिटेल फर्नीचर
दोनों आपस में क्लैश नहीं करते। रिटेलर की अपनी जगह है, फर्नीचर मेकर की अपनी जगह है, दोनों अपने हिसाब से ग्रो करते रहेंगे। इसी सवाल के बाद राकेश जी का सिग्नल टूट गया था, उनके उत्तर के बाद हम इसको फॉर्मली कंक्लूड करेंगे और सबके पास एक एक बार आएंगे कि वो अपना सजेशन बाजार के लिए क्या देखते हैं। सबके पास मैं एक एक बार आऊंगा, लेकिन उसके पहले राकेश जी से जानना चाहूंगा कि राकेश जी, मॉड्यूलर फर्नीचर में ग्रोथ आप कह रहे हैं कि 10 टाइम्स होगा, ये 10 टाइम्स कब तक होगा? सर आई वुड से इट विल बी 5 से 7 साल के पीरियड में, इफ थिंग्स चीजें सही जा रही है तो 100% होगा सर। यानी हमारे रिटेलरों के पास 5 साल अपने को तैयार करने के लिए है। चलिए, ये एक बहुत बड़ी गनीमत है। एक चीज और बताएं, क्या आपको रिटेल सेक्टर के लिए कोई सजेशन है? कैसे रिटेलर्स और फर्नीचर मेकर्स हाथ एक साथ जोड़ के कैसे काम कर सकते हैं? क्योंकि हर शहर में बड़े बड़े रिटेलर हैं, बड़े बड़े पटेल भाई हैं, माहेश्वरी लोग हैं, गुजरात और महाराष्ट्र के लोग हैं, कलकत्ता के लोग हैं, और ये सभी पुराने लोग हैं। सबने लकड़ी से काम चालू किया और आज पैनल प्रोडक्ट में बहुत हैविली इन्वेस्टेड हैं। और सडनली जब आप और अन्य ओईएम्स कहते हैं कि कोरोना के बाद रेडीमेड फर्नीचर ही सब कुछ है, तो थोड़ा सा ये जरूर लगता है कि हमारे रिटेल भाइयों के लिए कोई विंडो है क्या? क्या आप कुछ ऐसा बता सकते हैं फार्मूला? सर फॉर्मूला तो राइट नहीं हूँ, लेकिन एक बताऊंगा, मैंने करियर स्टार्ट किया 16 साल पहले। आज इस 16 सालों में सर मॉड्यूलर किचन का एक्सेप्टेंस कंप्लीटली आ चुका है ऑल ओवर इंडिया। अभी एक्सेप्टेंस आ रहा है मॉड्यूलर वार्डरोब्स, बेड्स, फिर स्टोरेज यूनिट्स, टीवी यूनिट्स। आने वाला समय सर सारा फर्नीचर, कंप्लीट फर्नीचर मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट में ही आएगा सर। तो टाइम के साथ चेंज होना ही पड़ेगा, ऑर्गेनाइज वे में आना ही पड़ेगा सर। मैं इतना ही बताऊंगा सर। कल हमारा है सर। क्या रिटेलर और डीलर किसी तरीके से कोई फर्नीचर वालों के साथ गठजोड़ कर सकते हैं? सर करना ही चाहिए, क्योंकि फील्ड इंटररिलेटेड है। तो कैसे होगा? इंटररिलेटेड फील्ड है। आपने कंपोनेंट भी बेचा है? जी सॉरी, क्या कंपोनेंट के साथ प्लाईवुड फर्नीचर हार्डवेयर, प्लाईवुड हार्डवेयर पैनल प्रोडक्ट बेचने वालों का कोई कंपोनेंट के साथ आगे बढ़ने का चांस हो सकता है? सर डेफिनेटली हो सकता है। उनको एक अच्छी जो पैन इंडिया, जो काफी ब्रांड्स पॉसिबल है, जो विजिबल है, अभी जो समझते फर्नीचर को, टेक्निकली प्रोडक्ट को समझते हैं सर, वो ब्रांड के एसोसिएट होना चाहिए, जिनका विजन बहुत क्लियर है, कल के लिए रेडी है सर विजन, और जो इंटरनेशनल मार्केट समझते हैं, डिजाइन समझते हैं और टेक्निकलिटी समझते हैं सर, उनके साथ जुड़ना चाहिए। लॉजिस्टिक कैसे होगा? जैसे आज आपकी फैक्ट्री वसई में है और आपने लखनऊ में किसी आदमी को डीलर के साथ गठजोड़ कर लिया, तो लॉजिस्टिक कैसे संभव है? सर लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, एक तो होता है नॉकडाउन फिटिंग, जो हम किचन मॉड्यूलर इरेक्ट करते देते हैं, सप्लाई करते हैं, सारा नॉकडाउन फिटिंग होता है। हम प्रोवाइडेड पूरा ट्रेनिंग दे सकते हैं, कारपेंटर्स, डिजाइनर्स लेके सब कुछ साइट पे पॉसिबल है। मैन्युफैक्चरिंग मुंबई में हो या कोलकाता में हो या दिल्ली में हो, साइट पे इंस्टॉलेशन पॉसिबल है सर, अगर ट्रेनिंग दिया जाए। तो यहाँ पर आपका ये कहना है कि आने वाले 5 से 7 सालों में फर्नीचर सेक्टर में काफी ग्रोथ रहेगी? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। और इसके लिए अगर रिटेलर, डीलर, पैनल प्रोडक्ट सेलर किसी न किसी तरीके से अपने आसपास के अच्छे लर्नेड फर्नीचर मेकर से हथजोड़ करें, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पूरक बन सकते हैं। इससे पहले कि मैं सबके पास एक एक बार और आऊं, मैं एक बार वर्गो ग्रुप का धन्यवाद करता हूं। आपका वीडियो हमारे टेक टीम से नहीं चल पा रहा है, कोई जूम में प्रॉब्लम है, स्क्रीन शेयर में प्रॉब्लम है, किसी चीज में प्रॉब्लम है जो हमारे beyond control है, but I will once again tell everybody on this audience side that Virgo Group is their extended support to run this webinar successfully, and they have also told about their product, very strong functioning in economy value for money laminates, very strong functioning in many of the countries where they are exporting laminate. They are doing fine business in pharma line, aluminum plating, PVC laminate, plywoods, fill fish shuttering plywood. I thanks entire team of Virgo Group for supporting the cause. इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए उनके इस प्रयास की, इस सहयोग की हम धन्यवाद करते हैं, सराहना करते हैं। मैं अब बारी बारी से एक बार सबसे पहले आऊंगा कि किरण भाई, आज के पैनल में सबके लिए सजेशन आपका क्या है? सभी के पास आऊंगा एक एक बार, आप लोग जरूर अपनी राय दें कि आज क्या क्या आपने कंक्लूड किया है या आप क्या बचा हुआ है जो सजेस्ट करना चाहते हैं। मैं किरण जी के पास आऊंगा, फिर नवीन जी के पास, कमल जी के पास, एंड सो ऑन। जी
सजेशन यही है कि अभी बहुत कठिनाई का वक्त है, ये टेम्पररी फेस है, हमको इसको सोच समझ के चलना है। जैसे फाइनेंशियल पार्ट से बोला है कि भाई हम लोग को थोड़ा कस्टमर के पास भी एडवांस लेके जितना हो सके उतना फास्ट पैसा लेके हमें डिस्ट्रीब्यूटर को देना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चर को देगा तो ये रोटेशन चलेगा, क्योंकि ये कठिनाई के वक्त में एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, चाहे वेंडर्स हो या कस्टमर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो या जो भी हो, हमें ये सपोर्ट करके चलना है। प्लस हमारे एक्सपेंसेस पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, लग्जरियस एक्सपेंसेस को थोड़ा अभी कंट्रोल करके चलना है। जो ये लॉकडाउन और ये स्लो डाउन का इफेक्ट भी कितना चलेगा, लॉकडाउन खुलने के बाद भी ये भी किसी को पता नहीं, तो ये वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट हुआ है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे रिसेशन अगर आता है तो इसका थोड़ा असर साल 1.5 साल भी रहता है। तो इस दौरान हमें कैसे चलना है, प्लस हमारे जो मैन पावर है, हमारा अपने मैन पावर को भी संभाल के चलना है, क्योंकि क्या है ये टाइम में हमें उनको भी सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, जो हमारे लिए काम करते हैं, जो इतना सालों से हमारे लिए लॉयल रहे। तो ये एक ही सजेशन है कि रिटेल लेवल पे शॉर्ट टर्म नहीं देखना चाहिए, और शॉर्ट टर्म देख के समझो हमने किसी वर्कर को निकाल दिया या पेमेंट के टाइम में हमने किसी को आगे पीछे कर दिया और उनकी अगर गाड़ी आगे पीछे नहीं चली, व्यवहार को बराबर नहीं संभाला, तो ये बड़ा प्रॉब्लम आगे हो सकता है। ये यही सजेशन। यानी कितना भी चलो साथ चलो, कठिनाई से भी हाथ पकड़ के चलो और किसी को छोड़ो मत। नवीन जी आपके पास आता हूं। नवीन जी आप अनम्यूट करें और अपना कंक्लूसिव रिमार्क दें कि क्या सजेशन है आपके रिटेलरों के लिए, मैन्युफैक्चररों के लिए। रिटेलरों के लिए भी समय तो आगे का कठिन ही है और हम लोग पूरा साथ देने की चेष्टा करेंगे, और फैक्ट्री वाले लोग के भी आगे कष्ट है, 3 महीना क्या जाएगा कुछ मालूम नहीं है। बस जितने अपने स्टाफ और लेबर हैं उनको अगर हम ध्यान से रखेंगे तो हम सरवाइव करेंगे, और उनका केयरिंग करें, और अपने अपने अगल बगल जितने भी लोगों का, जो मेरे कस्टमर उनका मैं ध्यान रखूं, लास्ट 3 महीना अगर मैं संभाल लूं उनको, तो आगे सब कुछ सही रहेगा। 3 महीने का कष्ट है। हांडू जी को क्लियर कट मैसेज हम जरूर देंगे, इसके समरी देंगे, इस सबके एक एक सजेशन के बाद। मैं कमल शाह जी के पास आऊंगा कि कमल शाह जी, नवीन जी ने कहा कि सबका साथ देंगे और इस कठिन वक्त अगले 3 महीने का, आपके लिए आप क्या सजेशन देंगे अपने फेलो बैंगलोर के रिटेलरों को? देखिए ऐसा है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर सब अपना खुद का सेल्फिश नहीं सोच के सब एक साथ जोड़ के अगर काम करेंगे कि वी आर वन, वी हैव टू सर्वाइव इन द मार्केट टुगेदर and see that we all of us earn from the same products for long time to come, सबका साथ बहुत ही जरूरी है। और सेकेंड थिंग, जैसे अपना स्टाफ का ध्यान रखना है, तो अपने जो हेल्थ स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट ने ये कोविड के कारण जो स्पेसिफाई किया है, वैक्सीन का कोई सर्टेनिटी नहीं है, जब तक वैक्सीन नहीं आए, ऑल ऑफ अस एट रिटेल लेवल टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द आर्किटेक्ट्स, कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, स्टाफ, we have to spend little more money in sanitization, cleanliness, जो भी जो क्या बोलते हैं टेम्पो ड्राइवर्स का जो साफ सफाई का वगैरह जो है, हाइजीन और सफाई पे आने जाने के लिए बहुत सारे लोगों की सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। ऐसा मैसेज बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, बहुत क्लियर कट इनसाइट है कि सिर्फ ये मत देखिए कि धंधा पास्ट में क्या किया, ये देखिए कि अगले 3 महीने जान कैसे बचानी है, साथ में साफ सफाई, हेल्थ की इश्यूज, एक दूसरे का साथ पकड़ के चले, नियत साफ रखें और काम करें। ललित अग्रवाल जी, आपको भी कोई सजेशन है रिटेलरों के लिए और मैन्युफैक्चरर के लिए, टू दी पॉइंट? रिटेलर्स के लिए मैं सबसे पहले ये एडवाइस देना चाहूंगा कि वो घबराए नहीं, अपने जो भी सप्लायर उनके साथ वो टच में रहे और अपनी पार्टियों के साथ बराबर वो टच में रहे, उनके कांटेक्ट में रहे। अब हमने काफी ये है, आने वाला समय ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे को थोड़ा मार्केट में कस्टमर कम रहेंगे, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से भी हमारे को कुछ मतलब इसमें संभावना है जहाँ पे अच्छे ऑर्डर्स निकल सकते हैं। क्योंकि जैसे ये मैटर किसी ने भी बात भी किया कि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण जितने भी मॉल्स है, मतलब बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, मल्टीप्लेक्सेस है, इन सब के अंदर इनोवेशन काम स्टार्ट होने वाला है। जैसे मैं 2-3 एग्जांपल आपको बता सकता हूँ। ये जो कंपनी है ब्लैकबेरी कंपनी जो है, जो फैशन की कंपनी है, उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि उनके वहाँ ट्रायल रूम का सिस्टम हटा दिया जाएगा
ट्रायल रूम की तरह वो ये प्रोविजन देंगे, आप घर से उसको ट्रायल करके देख लीजिए। टाइटन के ने ये डिसीजन लिया 6 फुट का डिस्टेंस होना पड़ेगा। डीएलएफ वालों ने ये डिसीजन लिया कि उनके वहाँ एक आइसोलेशन सेंटर होगा। तो ये सब जब इस सब काम के रिनोवेशन के लिए अल्टीमेटली प्लाईवुड या लेमिनेट या विनियर की जरूरत पड़ेगी, तो ये एक अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर है जहां से मिलेगा। और एक बात मैं इसमें एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि जितने भी हमारे रिटेलर भाई है, उसमें क्या है कि उनकी सबसे बड़ी जो दिक्कत आने वाली गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आएगी वो काफी टफ होगी। इस गाइडलाइंस के अलावा जो हाउसिंग सोसाइटी है वो अपने गाइडलाइंस और अपने कंप्लायंसेस और एड करेंगे, और हाउसिंग सोसाइटी सबसे डिफिकल्ट है, वो बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल रहती है। तो वैसे केस में आपको डिलीवरी देना बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर ये गाइडलाइंस आने के बाद अपने जो लोकल जो एसोसिएशन है, प्लाईवुड एसोसिएशन, उनके साथ मिलकर कोई एक सिस्टम बनाए, अपना सिस्टम बनाए, और वो सिस्टम को आप दुकानों पे लगा दे। अदरवाइज आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। बहुत अच्छा सजेशन है। उम्मीद है कि यहाँ पर जितने भी महाराष्ट्र के लोग सुन रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रखेंगे। इवन बेंगलोर या कोई भी वर्टिकल सिटी के लोग हैं वो इसे अप्लाई करेंगे। आज हमारे साथ जूम पर दिक्कतें रही, लोग जूम पर और हमारे 2 चैनल से हम रिले करते हैं, वहां पर करीब 1200 लोग जुड़े हुए थे, प्लस फेसबुक पर हमारे साथ 6 हैंडलों में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। और आने वाले आज के पूरे दिन में जब हम देखेंगे कि रात तक बहुत सारे लोग इसे व्यू करेंगे, तो आप सबके ये क्रिस्प मैसेजेज उनको काम आएंगे, जिसमें कि गाला जी ने कहा कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलें, नवीन जी ने कहा कि हम एक दूसरे का साथ देंगे और देते रहेंगे, चलेंगे आगे, दिक्कत है 3-4 महीने। कमल शाह जी ने कहा कि हाइजीन, क्लीन, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, फंड को बचा के चले, कॉशन होके चले, कॉशन रख के चले। और पिराज भाई आपसे पूछता हूं, किशोर भाई आपसे पूछता हूं, दीपक भाई आपसे पूछता हूं, आप तीनों बंबई के चारों तरफ घेरे हुए हैं, जल्दी जल्दी टू दी पॉइंट। लैमिनेट वालों के लिए पिराज भाई आप सजेशन दें, पूना से किशोर भाई आप सजेशन दें कि वहां के रिटेलर और मैन्युफैक्चरर क्या करें, और दीपक भाई आप ये सजेशन दें कि बंबई के रिटेलरों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, और फैक्ट्री वालों और डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए आप मैसेज देना। सबसे पहले पिराज भाई। हमारी जितने भी अभी हम लोगों ने जो सर्वे किया उससे ये एकदम क्लियर है कि इट इज हाई टाइम, अभी हम सबको एक ऑर्गेनाइज वे में काम करना ही पड़ेगा। वी हैव टू गेट ऑर्गेनाइज, वो भले होलसेलर हो या रिटेलर हो, आपको ऑर्गेनाइज वे में काम करना पड़ेगा। आपके क्रेडिट लिमिट्स आपको संभालने पड़ेंगे, आपके कैश फ्लोस आपको देखने पड़ेंगे। आज अगर यहाँ पे ये सब पढ़ेंगे, ये सब तो ठीक है, ये बताइए जो आपको 30 दिन में पैसा देता है वो माल देते हैं कि नहीं आप उसको? सर अभी तो खुला ही नहीं, माल देने का बात तो बाद में पुराना बात कर रहा हूँ सर। अभी सीन कैसा है कि फॉर एग्जांपल ब्रांडेड कंपनी आज पुराना 3 महीने बिफोर कोरोना 45 डेज की क्रेडिट पे माल देते थे कि नहीं आप? हम देते थे 30 डेज टू 45 डेज देते थे। वो 45 कर देता था तो नहीं देते थे क्या? देते थे सर, वो रिलेशनशिप पे आ जाता है। 90 कर देता था तो चौकड़ी लग जाती थी सर। लेकिन देते थे कि नहीं? नहीं, पुराना पैसा फिर नहीं देता था तो क्या करते थे? सर मांगना पड़ता है, इतना लंबा खींचना नहीं पड़ता। आज कंपनी अगर 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंट लॉक कर सकती है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को भी कोई ना कोई पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं। अगर पैरामीटर सेट नहीं करेंगे, कोरोना के बाद जब डिमांड बिल्कुल नहीं रहेगी या 30-40% पे आ जाएगी और सबको माल बेचने की बहुत ज्यादा गरज रहेगी, तो मुझे नहीं लगता कि हम बहुत टर्म्स कंडीशंस तुरंत लगा पाएंगे। मुझे ये लगता है कि हाँ, ये ऑर्गेनाइज होकर काम सबको करना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त है। पिराज भाई और प्रैक्टिकल सजेशन दीजिए। बस यही है कि हमें इस चीजों में अपना ध्यान देना ही पड़ेगा, और कैसे भी करके थोड़ा बहुत जितना हो सके अपना पैसा इन्फ्यूज करके इस पहिए को चलाना पड़ेगा। और एक चीज, कोविड के जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होगा। और इसके अलावा लेबरर्स का ध्यान रखें। आज आफ्टर कोविड ये बात कंफर्म है कि बिजनेस आपको 100% डे 1 से नहीं मिलेगा। मुंबई जैसे एरिया में जो एक्सपेक्टेशन है, आपके पास जो भी काम आगा, वो जो रुका हुआ काम है वो होगा, तो आपका बिजनेस 15% 20% होगा। एक सवाल आपसे रह गया था कि नॉन फोल्डर लेमिनेट का क्या आगे समय? सर आप बॉम्बे की मार्केट अगर देखेंगे तो 60 to 70% बिजनेस जो है वो शोरूम से हो रहा है, और जो शोरूम में बिजनेस हो रहा है वो नॉन फोल्डर से ज्यादा हो रहा है। आज नॉन फोल्डर आगे सर आगे ऐसा है कि नॉन फोल्डर रहेगा, चूंकि आज मैं आपको बताऊं कि कोविड जब ये गाइडलाइंस लागू करनी पड़ेंगी, शोरूम वाले जो हैं वो सबसे पहले लागू करेंगे ये चीज। उनके पास पैसा भी होगा और ये सबसे पहले चीज वही लागू करेंगे। और वही यानी कस्टमर शोरूम जाएगा,
सर महीने में नहीं जाएगा तो 2 महीने में जरूर जाएगा। और एक चीज कंफर्म है कि एक सेगमेंट अलग है, प्रोजेक्ट्स में आज भी फोल्डर ही बिकता है, लेकिन रेजिडेंशियल यूज में नॉन फोल्डर या शोरूम्स का दौर ज्यादा है। तो विराज भाई का ये कॉन्फिडेंस सभी शोरूम वालों के लिए राहत की बात है। आज शोरूम वालों के लिए, स्टोर वालों के लिए, रेंटल वालों के लिए राहत की मैसेज ये है कि उनके धंधे में देर है, अंधेर नहीं है। ग्राहक वापसी आएगा, ग्राहक लेकर जाएगा, क्योंकि उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। और सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म अगर स्टोर कीपर, स्टोर ओनर सबसे पहले अप्लाई करें, विश्वास जगाए कि उनका स्टोर सुरक्षित है, सैनिटाइज्ड है, तो स्टोर्स को वापस ग्राहक बुलाने में 2-3 महीने के बाद आसानी होगी। मुझे उम्मीद है कि कमल जी और किरण जी भी इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे। यस, मैंने तो ऑलरेडी कहा ना जी, ऑर्गेनाइज होना ही पड़ेगा। यस, आज इस पैनल पर, और किशोर जी आपका भी कोई सजेशन? मुझे सबसे पहले आपको पूना, पिंपरी चिंचवड़ और महाराष्ट्र की डीलर की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और वर्गो ग्रुप ने जो ये स्पॉन्सर किया है ग्रुप, ये जो आज का वेबिनार जो वर्गो ग्रुप ने स्पॉन्सर किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उनके पूरे टीम को, आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं मैन्युफैक्चरर्स, जो केरला के मैन्युफैक्चरर्स और यमुनानगर, नॉर्थ इंडियन, वेस्ट इंडियन, ईस्ट इंडिया के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मोदी जी ने बोला है कि आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर का इसका मतलब जैसे एग्जाम्पल हमने दिया कि जैसे एग्जाम्पल हमारे पास BMW, तो BMW फेंकनी नहीं है और मारुति खरीदनी नहीं है, ये वाली बात नहीं है। लेकिन जो हमको इंपोर्ट का माल जो OEMs खरीद रहे, उस क्वालिटी का, उस दर्जे का माल बनाने के लिए हम उनको जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है, लैमिनेट के, हमारे प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स, डोर मैन्युफैक्चर, उनको मैं निवेदन करूंगा कि वो उनके जो भी स्टाफ है, मैनेजर्स है, उनके जो अपकमिंग नए जो अभी नई पीढ़ी है, उनको चाइना, यूरोप, जर्मनी भेज के वो क्वालिटी देख के वो दर्जे का क्वालिटी का प्लाईवुड इंडिया में बनाए, ताकि हमारी GDP ग्रोथ बहुत सुंदर हो जाएगी। बहुत अच्छा किशोर भाई, बहुत उम्दा मोटिवेटिंग बात। दीपक भाई आप भी लास्ट ऐड करें और फिर हम इसे समरी करेंगे जी। और एक बात थी प्रगत जी। जी बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे रिटेलरों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे रिटेलर जो है हमारे महाराष्ट्र के अंदर हमने देखे, और पुणे सिटी में, और जो भी बैंगलोर, बॉम्बे में रहेंगे, उन लोगों ने ज्यादा करके नेट बैंकिंग जो है, नेट बैंकिंग का यूटिलाइज नहीं करे। जैसे कमल जी और किरण जी ने बताया कि ऑर्गेनाइज वे में काम करना पड़ेगा। बहुत लोगों ने नेट बैंकिंग नहीं किया है, नेट बैंकिंग की वजह से पेमेंट आई नहीं है मार्केट के अंदर, और उसके वजह से हम होलसेलर, हम मैन्युफैक्चरर्स को नहीं दे पाए, और मैन्युफैक्चरर अपने जो भी रॉ मटेरियल वाले को दे नहीं पाए वो। तो ये मैं सबको निवेदन करूंगा रिटेलरों को कि सब जन अपना इंटरनेट, अपने जैसे जो भी, जैसे हमें पुणे का है, पुणे और महाराष्ट्र का जो लॉकडाउन डिक्लेयर किया 31 तक, तो उनको सबको निवेदन करूंगा कि जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो छोटा सा घर में एक अपना ऑफिस बना ले, अपना टैली खुद ही, अपना टैलीज में जो भी एंट्रीज लेके, जो भी पेमेंट का फॉलोअप करके, लोगों का पेमेंट, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर का पेमेंट देंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर भी अपना मैन्युफैक्चर का दे देंगे। और आगे थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ, जैसे अपना आर्ट का जो है फुल फॉर्म है, आर्ट का ANA एक्सेप्टेंस होता है, RNA रिस्पॉन्सिबिलिटी, और TNA टॉलरेंस। ये तीनों चीज हमको अंदर में लेनी पड़ेगी, उसके सिवा ये काम नहीं होगा। तो सभी रिटेलर्स को भी मैं निवेदन करता हूँ कि उन्होंने भी कुछ ना कुछ कैपिटल इन्फ्यूज करे, जो हमारी FDs वगैरह रहेंगी तो उनको भी यूटिलाइज करें इस टाइम में, इस वक्त में, ताकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पेमेंट मैन्युफैक्चर को दे पाएंगे। ये बात और तो आगे करके ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हम डीलर्स को डीलर्स बोलना चाहता हूँ कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। जितने भी हमारे डीलर सुन रहे, पूना के जितने भी हमारे होलसेलर्स है, उनकी तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ डीलर्स को पूरा सपोर्ट रहेगा हमारा। आप बिंदास अपना जितना भी सेल ला सकते हो लेके आओ, लेकिन एक बाजू में पेमेंट भी आप दो, वो बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए। तो स्टे होम, स्टे सेफ, ये हमारा जो है। और आगे बस आज बस एक लाइन प्रगत जी, जो हमारे सामने जो ड्राइंग आई हुई है, जो जैसे हमको ड्राइंग दिख रही है ना, आज कोरोना की ड्राइंग दिख रही है हमको, जो फियर दिख रहा है वो थोड़े दिनों के बाद जाने वाला है। सिर्फ हमें थोड़े धैर्य की कमी है, 3 महीने की हमारे को कमी है, सब कुछ ठीक होने वाला है। तो सबको हमारे को, हम लोग जैसे सपोर्ट करेंगे ऐसे रिटेलर भी हमको सपोर्ट करे, ताकि हम मैन्युफैक्चर को सपोर्ट करें। किशोर भाई बहुत अच्छा बोलते हैं। पूना से आप हमारे इंडिया इंटीरियर रिटेलिंग का जब भी कॉन्फ्रेंस होगा आपको हम स्पेशली जरूर बुलाने वाले हैं। ऐसे ही जोशीले भाषणों की तो जरूरत है। दीपक छेड़ा जी, कंक्लूसिव सजेशन कोई है रिटेलर के लिए बॉम्बे के? सर अभी समझो इधर बम्बई के अंदर से 2 से 3 महीना बिजनेस तो बिल्कुल नहीं होगा,
जो हम लोग ने भी क्रेडिट का जो बात है, क्रेडिट जो दिए हुए है उसके ऊपर काफी फोकस करना है और जितना हो सके वो जल्दी रिकवर हो सके करे, उतना सबके लिए अच्छा है सर। बस सर। धन्यवाद दीपक जी। आज के पैनल में रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ओईएम सभी ने अपना पक्ष रखा। जूम ने परेशान किया, लॉकडाउन में जूम भी डाउन हुआ, फिर भी हमने किसी भी तरह से रुकावटों के साथ एक निष्कर्ष निकाला है जो इन सभी महानुभावों ने, किरण भाई ने, कमल शाह जी ने, नवीन पोद्दार जी ने, ललित अग्रवाल जी ने, दीपक छेड़ा जी ने, फिराज साहनी जी ने, किशोर मुत्था जी ने और राकेश कोखानी निर्वाणा मॉड्यूलर वसई से, इन सब ने एक कंक्लूजन दिया है। पहला कंक्लूजन, स्टे सेफ। ये कोरोना 2 से 3 महीना जान ले सकता है या दिक्कत कर सकता है, क्योंकि यही सोचकर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया है, यानी अभी भी वक्त है सुरक्षित रहने का। दूसरा, अगर डिमांड आती है तो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर मटेरियल देने के लिए तैयार है। ये आज का कंक्लूजन साफ दिखाई दे रहा है कि अगर डिमांड आती है तो डिस्ट्रीब्यूटर आगे पैसा देने के लिए फैक्ट्री वाले को और रिटेलर को सपोर्ट देने के लिए तैयार है। तीसरा, अगर रिटेलर के पास अननेसेसरी स्टॉक है, सबसे पहले वो बाजार में डरे और साथ में काम भी करे। कोरोना से डरे लेकिन साइट पे जाके माल बेच के उसको पैसे में बदले, पैसे में बदल के फैक्ट्री वाले को दे, साथ में वो अपनी एफडी या न्यू फ्रेश लोन या कहीं से भी बोरोइंग करके कुछ न कुछ फंड इन्फ्यूज करे। चौथा, लोग गोडाउन के रेंटल्स को निगोशिएट करें और उनसे माफी मांग लें 2 से 3 महीने के लिए। आप कोशिश करेंगे तो आपका लैंडलॉर्ड आपको राहत दे सकता है। पांचवा, वर्कर्स को संभाल के रखें, क्योंकि वर्कर्स आपका अगला रॉ मटेरियल है। वर्कर्स आपके साथ हैं तो आपका बिजनेस है, वर्कर्स नहीं है तो आप एक गाड़ी भी अनलोड नहीं कर सकते। छठवां, रेडीमेड फर्नीचर आने वाले समय में आगे रिटेल पर थोड़ा इंपैक्ट करेगा, स्पेशली उन सिटीज में जहां पर की वर्टिकल बिल्डिंग्स है, वहां पर की जहां पर छोटे और आईटी के ज्यादा सेंटर हैं, जैसे बेंगलोर, जैसे वाशी, जैसे पूना, जैसे हैदराबाद, या और भी ऐसे सेंटर्स जहां पर छोटी फैमिलीज हैं, वहां पर रेडीमेड फर्नीचर का आगे भविष्य उज्जवल है। लेकिन साथ ही रिटेलर्स जिनके पास डिजाइनर आइटम्स है, वो 2, 3, 4, 6 महीने के लिए दिक्कत महसूस करेंगे, लेकिन उनके पास ग्राहक दोबारा आएंगे अगर उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नॉर्म्स बनाए, गाइडलाइंस बनाई, सैनिटाइजेशन के प्रबंध किए, तो ऐसे दिन दूर नहीं है जब वापस ग्राहक उनकी दुकानों पर रुख करेंगे। इन पूरी पॉजिटिव आउटकम्स के साथ, इस पूरे की टेक अवे के साथ, मैं पूरे वर्गो ग्रुप का धन्यवाद करता हूं। खेद व्यक्त करता हूं कि जूम की वजह से हमारी ये मीटिंग थोड़ी डिस्टर्ब हुई, और साथ ही स्पेशली हम सारे ऑडियंस को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस आज के ग्लिचेस के साथ भी अपना धैर्य बनाए रखा। धन्यवाद सभी को। उम्मीद करते हैं कि कोई भी हमारी किसी के नाम के उच्चारण में गलती हुई हो या कोई कंक्लूजन में कुछ छूट गया हो, तो वी रिग्रेट फॉर दैट। कमल जी धन्यवाद। आप सभी, आप स्वतंत्र हैं कुछ न कुछ बोलने के लिए। अभी भी 400 लोग जुड़े हुए हैं, 600 लोग। आप चाहें तो बोलते रहे ताकि ये कम से कम 100 लोग हो जाए, तब हम लॉग ऑफ करते हैं। ऐसा हमने पास्ट में देखा है। तो कमल जी और किरण जी और ललित जी, आप लोग कुछ बोलिए, क्योंकि अच्छा रहेगा अगर आप कुछ शेयर करें खुला। अब जो चाहे वो ऐसे हाथ उठा के बोल सकता है। सबसे पहले तो विर्गो ग्रुप का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जो आप इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सरशिप किया है, प्लस प्रगत भाई और टीम जिन्होंने खूब मेहनत करके इतने परेशानी में भी आपने ये वेबिनार किया है, ताकि इसका अवेयरनेस पूरे हमारे ट्रेड में और इससे काफी नॉलेज एक दूसरे का शेयर हो सके, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद। जैसे कि कोई भी प्रोग्राम में स्पॉन्सर की जरूरत रहती है, तो we are definitely grateful to Virgo to provide an opportunity to the entire industry, and superbly organized by Ply Reporter। आपकी जो एनर्जी लेवल है, कंटिन्यूस फॉलो अप, डिटेल भेजना वगैरह वगैरह करके, यू डन एन एक्सेलेंट जॉब, एंड आई होप द एंटायर इंडस्ट्री
manufacturers, wholesalers, retailers, distributors, everybody should benefit out of this kind of experience during this lockdown period, where we have to rejuvenate further and see that in future we are able to come out much stronger than before. These difficulties always teach us a lot of things, and this is one of the things which we have learned from this lockdown. Thank you. Thank you again. All the best. Yes, Piraj bhai. कि फर्स्टली तो मैं हमेशा की तरह प्रगट जी आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ. You have worked as a bridge between the customer and the retailer, and also the retailer and the distributor, and the distributor and the manufacturer. तो ये जो आप लोग काम कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया है. वर्गो ग्रुप का धन्यवाद ये चीज स्पॉन्सर करने के लिए. और मैं एक छोटी सी चीज अपने रिटेल व्यापारियों को कहना चाहूँगा, बेचारे थोड़ा रहेंगे कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो एक अटूट विश्वास पे है. हम इतने टाइम से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं. पिराज एजेंसी को 32 साल हो गए इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड में. हमने हमेशा से आपका साथ दिया है. ये एक वक्त है कि हमें आपका भी साथ चाहिए. तो प्लीज आप आपके क्लाइंट से और अपनी तरफ से ये साथ अभी आप भी निभाएं और हम सबकी मदद करें, और इस गाड़ी जो मैंने बात की थी, इस गाड़ी के चारों चक्के को बराबर से चलाएं. थैंक यू. बहुत अच्छा पिराज जी. वी आर ऑल विथ यू एंड एंटायर ट्रेड इस पूरे एपिसोड में लास्ट 1.5 महीने में मैंने देखा है हमारे वुड पैनल ट्रेड ने पर्टिकुलरली इस पूरे बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर में जो जोर दिखाया है, जो प्यार दिखाया है, एक दूसरे के साथ आपस में डिफरेंसेस हैं फिर भी साथ खड़े उम्मीदों से भरे दिखाई दे रहे हैं. ललित जी आपको भी कुछ कहना है तो यू आर ओपन. मेरे को प्लाईवुड का जो अपना प्लाईवुड इंडस्ट्री है इस पे मेरे को काफी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री जो मैंने अभी तक फील किया है इसमें बैड डेब्ट का चांसेस बाकी ट्रेड के अपेक्षा बहुत कम होता है. और यहाँ क्या है कि हमारा एक जैसे एक मतलब फैमिली का सा बंधन है जैसा टाइप का. जैसे फैक्ट्री वाले जो है उनके साथ हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है, हमारे डीलर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है. ये एक दिक्कत जरूर है, हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं. हम सब मिलके इस चीज को हम सब कुछ ठीक कर सकेंगे. फिर से मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा, आज प्लाईवुड इंडस्ट्री बहुत ज्यादा दिक्कत की दौर पे है. इसको जीवित रखने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम उनके साथ में फंड उनको साथ में फैक्ट्री के साथ में हम टाइम से दे पाए. अगर हम दे नहीं पाएंगे तो हमारा सारा का सारा काम रुक जाएगा. इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको उसको जिला रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय. थैंक यू. बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया. राकेश जी आपको हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन आप कुछ कंक्लूसिव रिमार्क दे सकते हैं. हाँ, एक बात मुझे कहना है कि जो क्रेडिट पीरियड चल रही है अपने पूरे पैनल इंडस्ट्रीज में, जैसे लेमिनेट अगर लेमिनेट का देखा जाए तो लगभग 60 to 90 डेज की क्रेडिट पीरियड चल रही है अभी, और प्लाईवुड इंडस्ट्री के अंदर 60 डेज की लगभग क्रेडिट पीरियड चल रही है. तो मुझे सबसे मैन्युफैक्चरर से भी कहना है कि कोई भी टाइप का रेट इंक्रीमेंट नहीं करे. लेमिनेट, प्लाईवुड और फिल्म फेस, शटरिंग प्लाईवुड, कोई भी टाइप का प्लाईवुड का इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, और ताकि मार्केट हमारी पूरी सस्टेन कर सके. और ये कहना मुझे कि हम लोग जितने भी रिटेलर भी है तो रिटेलर को भी हम निवेदन करते हैं कि आप भी हमारे से डिस्काउंट जो है मैं इसमें वैल्यू ऐड करूंगा. अभी पिछले वेबिनार में नॉर्थ इंडिया क्या कहता है, नॉर्थ इंडिया 1 और 2, उसमें एक बहुत जेन्युइन बात निकल के आई कि अगर फैक्ट्री 25, 30, 40% मैक्सिमम पे ऑपरेट करेगी तो वो ऑपरेट ही नहीं कर पाएगी. उसका नेचुरल है कि वो उस बॉयलर को पूरा चलाएगी, फाइनेंसेस को अरेंज करेगी, उसके कॉस्ट उसको पोसाएंगे नहीं. नो डाउट कि कुछ रॉ मटेरियल टिम्बर शायद सस्ता भी मिल जाए, लेकिन कितना भी कुछ मिले फैक्ट्री आज की डेट में सस्टेन नहीं कर सकेगी. शायद हो सकता है कि कई लोग ना रेट बढ़ाएं, लेकिन कई लोग रेट बढ़ा भी सकते हैं और उनको हम दोषी शायद नहीं ठहरा सकते क्योंकि उनके अपने लॉजिक है. एक यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है प्रियंका साहनी जी का कि लॉकडाउन के बाद बिजनेस रिज्यूम करने के आइडियाज क्या है. ये आइडियाज बहुत अच्छा है. आइडियाज किसके पास अच्छा आइडिया है, क्या ये शेयर कर सकते हैं किरण भाई, किशोर भाई, कमल जी? देखो एक बात है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं कि मंदी में संधि, मंदी में संधि, यानी इसका मतलब हो गया हिंदी में अगर बताएंगे कि रिसेशन के अंदर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है. जो हमारी रिसेशन चल रही है उसके अंदर अपॉर्चुनिटी, तो हम लोग वो बताइए क्या है. ये तो ठीक है, तो लाइन अच्छी है. क्या आपने क्या अपॉर्चुनिटी खोजी है? नहीं, मुझे ये कहना है कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटर जो है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में जैसे नई लाइन जो है काफी, जैसे अभी जैसे निवारा वाले भी थे, ओईएम्स वाले, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि आगे जाके तो जैसे रेडीमेड फर्नीचर का ट्रेंड आने वाला है, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी अगर कोई डीलर
मैन्युफैक्चरिंग में भी जाना चाहता है तो उसके अंदर अच्छा स्कोप है। तो आइडियाज लॉकडाउन के बाद बिजनेस बढ़ाने के आइडियाज ये हैं कि वो नए प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करें। कमल जी और कुछ आप ऐड करेंगे इसमें? कोई आइडिया है, ऐसा मंत्र है जो देने से शायद कि अभी भी 250 लोग हैं, हम लोग 500 लोग हैं 2 चैनलों पे अभी भी हैं, बताएं हम कैसे उनको छोड़ दें? जी बताएं। ऐसे कोई आइडियाज ऐसे इमीडिएटली तो देखिए, जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा, जैसे पैसे का ये सभी, जैसे सबको मालूम है कि पैसे के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। पहले तो रेगुलर सप्लायर को पेमेंट जा रहा है तो बाद में कुछ नई लाइन का सोच सकते हैं ना। अपना जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ क्या है कि अपनी जो इन्वेंट्री है, जो अपनी जो मार्केट में है, अपनी जो एक्सपर्टीज है, अगर अपनी एक्सपर्टीज छोड़ के कुछ और काम करने जाओ और फंस गए तो। बहुत अच्छा पॉइंट, वैलिड पॉइंट। जी किरण जी। देखो, ये कैश फ्लो के लिए एक सजेशन है। जैसे हमारे हार्डवेयर ट्रेड में काफी बड़े बड़े ब्रांड ने और बड़े बड़े सप्लायर ने क्या किया है कि आपका आज दिन तक का जितना भी आउटस्टैंडिंग है उस पे इन्होंने डिस्काउंट रख दिया 4%, 5%, 3%, ताकि अगर आप बाहर से बोरो करते हो पैसे इंटरेस्ट पे तो उसका भी आपको ये सेट ऑफ दूसरे वे में डिस्काउंट के वे में मिल जाता है। तो इससे उन लोगों को लिक्विडिटी का काफी उनको सपोर्ट मिल गया और काफी पैसा बाजार से आया। बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे जितने ऑडियंस है, अगर उसमें मैन्युफैक्चरर और बाकी लोग हैं, उनके लिए अच्छा इनपुट किरण भाई ने दिया कि whatever outstanding you have, if you're giving some 3, 4, 5% CD or discount, they can at least afford to borrow it or arrange it, and they will see some value in paying you money. And correct. It's a nice idea, very very bright and positive point by Kiran bhai. Thank you Kiran bhai. और कुछ भी है तो आप ऐड कर सकते हैं। There are so many still people want to listen. अगर वो है तो सब इसीलिए है क्योंकि वो सुनना चाह रहे हैं। प्रगत जी, हमारे डीलर ने बताया कि यूरोपा और रेहाउ ने डिस्काउंट का ऑफर किया है। यूरोपा लॉक्स वाले और रेहाउ के जो भी जितने भी मटेरियल है, ओईएम्स को लगने वाली आइटम्स है, जैसे एज बेंडिंग टेप्स है और उनके जो भी है, तो उन्होंने 3 to 10% का डिस्काउंट ऑफर किया है कि जो भी हमारी आउटस्टैंडिंग्स है, समझो जितने भी है, अगर नया मटेरियल कुछ चाहिए तो उसमें एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट, और पुराना पेमेंट आप देते हो तो उसमें 3% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने की बात की। हार्डवेयर के जितने भी हमारे डीलर से जो भी जुड़े हुए हमारे से, उन्होंने वो बात की थी कि अगर टाइम मिला तो जरूर शेयर करना वो उसमें। बहुत बढ़िया। और कुछ पॉइंट है? और बस वे है तो सर यही है मैं कहना चाहूंगा। तो आज के वेबिनार में अब तक 3 पॉइंट और बहुत सुंदर ऐड हुए हैं, लेकिन किसी का सवाल था कि अमित कुमार जी पूछते हैं कि आगे जाके प्लाईवुड के रेट्स कैसे रहेंगे। तो महानुभाव, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सीडी मांगने के अधिकारी हो गए, आप मांग सकते हैं और रेट आपके लिए उतने ही जेन्युइन रहेंगे जितना आपके पास रिजर्व और इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम रहेगा। निशांत अग्रवाल जी पूछते हैं कि will there be any some change in sales and marketing style of the dealer and distributor? बहुत अच्छा सवाल है किरण भाई। डीलर का मार्केटिंग स्टाइल में कोई बदलाव देख रहे हैं क्या आप? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर पीटर्स भाई के पास भी आऊंगा। किरण जी, क्या सॉरी सवाल है कि क्या मार्केटिंग के स्टाइल में रिटेलर के बदलाव आएगा क्या डीलर के? थोड़ा बदलाव आएगा, बिजनेस का कॉन्सेप्ट बदली होगा, थोड़ा बदलाव आएगा और बदलाव आना भी चाहिए। थोड़ा बिजनेस प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट वगैरह में काफी में फर्क आएगा, उनको काफी थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ेगा। अभी जैसे ये पूछ रहे हैं कि जैसे बहुत सारे कस्टमर छूने में हेजिटेट करेंगे, टच एंड फील को हेजिटेट करेंगे, तो इसका सीधा आंसर नहीं है कि सैनिटाइजर रखो, छूने के बाद उसका हाथ धुलवा दो। नहीं, सैनिटाइजर रखो, ग्लव्स दे दो, वो अपने आप ग्लव्स पहन के वो टच करे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ओके, तो बहुत अच्छा, द क्वेश्चन इज आंसर्ड। मैं पीराज भाई, आप कुछ ऐड कर रहे थे? मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, कंपनी के सेल्स या हमारे जो सेल्समैन है उनका अप्रोच चेंज करना ही पड़ेगा। आज अभी वो आपके पास आपकी दुकान में दिन में आधा घंटा चाय पीना को नहीं आएगा, वो जितना कोशिश करेगा 3 दिन में आपसे जूम पे ही बात करेगा या व्हाट्सएप कॉल से ही बात करेगा, और उससे प्रोडक्टिव टाइम और देना पड़ेगा और टेक सेवी होना पड़ेगा। आज के जो अपने नवे आएंगे रिप्रेजेंटेटिव, उनको थोड़ा टेक सेवी बनना ही पड़ेगा और ये माध्यम थोड़ा चेंज होगा ही होगा। So extra 10 minutes we have got a beautiful one line idea is that ask for discount extra if you are paying and clearing the entire amount। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन के पहले जो पैसा आप रखे थे उस पे भी अनएथिकली डिस्काउंट मांगने लगे, इसका मतलब ये कतई नहीं है। इसका मतलब ये है
कि आप अगर किसी का पूरा पैसा क्लियर करें, ज्यादा से ज्यादा करें, तो आप उस पर जरूर डिस्काउंट मांगे। उम्मीद है कि आज का वेबिनार बहुत सारे छोटे एसएमईज, रिटेलर्स और सभी को सहायक होगा। हम इसका क्रक्स अगले कल एक वीडियो में जरूर अपलोड करेंगे। इसका वीडियो पूरा का पूरा जो लोग मिस कर रहे हैं उनको फेसबुक पर रिकॉर्डेड वीडियो भी पूरा मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि हम अगले संडे पुनः एक नए टॉपिक पर नए सब्जेक्ट के साथ आपके पास पुनः उपस्थित होंगे और अगली बार जूम ग्लिच नहीं पैदा करेगा। धन्यवाद सभी पैनलिस्ट को, कमल जी, किरण जी, किशोर भाई, राकेश कोखानी जी, ललित अग्रवाल जी, माय कलीग, एंटायर टीम, किशोर मुत्था जी, विराज साहनी जी, सभी को धन्यवाद। एक बार पुनः सभी को आपका बहुमूल्य समय निकालने के लिए धन्यवाद। इसके पहले ऑलरेडी जो जा चुके हैं उनका भी धन्यवाद, पोद्दार जी का, और बॉम्बे से एक और हमारे साथी जो अब कनेक्टेड नहीं है, आज बहुत दिक्कत रही, सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू so much. Thank you, Pragat ji. It was very nice. It was Thank very you. nice interaction. Stay Thank you safe, so stay much. healthy. Thank you very much, thank you very much. See you again. Thank See you. you soon, sir. See you soon. Take care. Thank you Virgo Group for sponsoring it. We will come back together again next time, next Sunday. Bye bye. Right. Yeah. Bye-bye. Bye. 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 Bye.